السلام علیکم, گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو صبح نو. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں؟ اور ذرا آج میں چاہتی ہوں کہ شروعات میں ہی ہم ڈریس کی بات کریں. جی 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 بالکل, تھینک یو سو مچ. ذرا میرا ڈریس تو دکھائیں. دس از بائی ہیو. یہ بڑا ہی فائن قسم کا ایک ڈریس ہے, بڑی ہی فائن اس کی ڈیزائننگ ہے, اور میں نے سوچا کہ بعد میں تو ہم پروگرام میں بزی ہو جاتے ہیں تو مشکل ہو جاتا ہے, تو آج ہم آپ کو ڈریس شروعات میں ہی دکھا دیں. ہیو, آغا نور, منہال, یہ کچھ وہ ڈیزائنرز ہیں جن کو میں روزانہ کیری کر رہی ہوتی ہوں, اور کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے کہ دوران گفتگو ان کا نام لینا رہ جاتا ہے, لیکن ان کی اتنی محنت ہے اور وہ ہمارے پروگرام کے لیے اپنا ایک پارٹ پلے کر رہے ہوتے ہیں, تو میں نے سوچا آج یہ رسپانسبلٹی صبح صبح میں نبھا دیتے ہیں. آج کے پروگرام میں مختلف چیزیں ہمارے ساتھ ہیں, اور کیونکہ عید الحمدللہ نزدیک ہے تو اس کے حوالے سے بھی بہت چیزیں, بہت پلاننگز عید کے دنوں کے حوالے سے آپ کے لیے پلاننگز ہم نے سوچ رکھی ہیں, وہ آپ کو رفتہ رفتہ پتہ چلے گا. اس وقت آج میں آپ کو ایک ایک سیگمنٹ ہی لے کر چلوں گی. اس وقت جو ہے سب سے پہلے ہم خبروں پر آج نظر ڈالیں گے. خبریں اچھی بھی ہیں, خبریں غور طلب بھی ہیں, خبریں گفتگو طلب بھی ہیں, تو یہ تمام چیزیں ہم کریں گے. سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہماری حامد و نعت خواں ارم خان موجود ہیں, انہیں یہاں مدعو کرتے ہیں. السلام علیکم. آئیے ارم, آئیے پلیز تشریف رکھیے. اور ارم کے ساتھ ساتھ میں شیر محمد خاور صاحب کو بھی یہاں پر دعوت دوں گی. ہمارے جرنلسٹ ہیں اور آج کی خبروں پہ ہمیں ان سے بات کرنی ہے. السلام علیکم, پلیز بیٹھیے. اور ہم شروعات کریں گے ہم سے. ارم, تو پلیز. تیری حمد ہے تیری ثنا, تیری حمد ہے تیری ثنا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. دھڑکن دھڑکن ورد تیرا, دھڑکن دھڑکن ورد تیرا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. جو توحید کا نغمہ ہے ہر دم گونجتا رہتا ہے, جو توحید کا نغمہ ہے ہر دم گونجتا رہتا ہے, ہر دم گونجتا رہتا ہے. کوئی شریک نہیں تیرا, کوئی شریک نہیں تیرا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. عالم عالم صبح بسا تیرے آگے سر ہے جھکا, عالم عالم صبح بسا تیرے آگے سر ہے جھکا, تیرے آگے سر ہے جھکا. بے شک تو ہے سب سے بڑا, بے شک تو ہے سب سے بڑا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. ذات ہے تیری ہی بے عیب, تجھ پر ایمان ہے دل غیر, ذات ہے تیری
अफजल है कलमा, सबसे अफजल है कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। और बेशक यही सबसे अफजल कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह। और आजकल तमाम हम्द सना खान जो हैं वो यही हम्द पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं मुतवातिर यही हम्द सुन रही हूँ, एक अल्लाह हूँ और एक ला इलाहा इल्लल्लाह। यार अल्लाह ताला आप लोगों की नीयत को और आपके कलाम को कबूल मंजूर फरमाए। और क्योंकि ताक रातों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और मैसेजेस का सिलसिला भी शुरू हो चुका है कि अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है, मुझसे कोई गलती हो गई है तो माफ़ फरमा दीजिएगा। तो वो जब हमें अच्छी रातें अच्छे अयाम आते हैं तो जाहिर है बहुत से ख्यालात आ जाते हैं। ये करें कि फिर गलती नहीं कीजिएगा। बड़ा मासूमियत से आवेगा, फिर गलती नहीं कीजिएगा। वैसे रिप्लाई अच्छा है ये, तो दोबारा गलती ना कीजिएगा। आज के अखबारात में बहुत से चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी है, लेकिन एक बात, क्योंकि आज सेकेंड हाफ में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि मकान को घर कैसे बना सकते हैं। मकान को घर कैसे बना सकते हैं। अगर आपने जल्दी ऑफिस के लिए निकलना है, जल्दी घर से काम के हवाले से किसी भी वजह से निकलना है, तो आप शुरू में भी कॉल करके इस पॉइंट पे इनपुट दे सकते हैं। और मैं चाहती हूँ आज आप भी इस बात थोड़ी सी बात जरूर करें कि मकान को घर कैसे बना सकते हैं। एक ही जवाब है इसका कि प्यार के साथ, एहतराम के साथ। एहतराम, और जहाँ पर एहतराम नहीं है, जहाँ पर फीलिंग्स नहीं है, जहाँ पर आपने देखा होगा कि एक किराए के छोटी सी झुग्गी में या छोटे से फ्लैट में रहने वाले घर में भी इतनी सारी मोहब्बतें होती हैं कि आदमी बड़े बड़े प्रोग्राम छोड़ देता है, बाहर के ट्रिप छोड़ देता है, बाहर रहना पसंद नहीं करता, ऑफिस से या अपने कारोबार से या जो कुछ भी करता है कहता है फौरी तौर पे घर पहुंचे, क्या है कि उसे सुकून मिलता है। और इसी शहर में आपने देखे होंगे करोड़ों रुपए की कोठियां हैं, बाहर ताले लगे हुए हैं। कुछ लोगों को तो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते होंगे, बच्चे जवान हो गए, कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया, और घर में वो हू का आलम है, नौकरों के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं। और ये मुझे देखने में तो बड़े घर हैं। में जिन बच्चों को नौकरों ने संभाला होता है ना, वही फिर बुढ़ापे में आपको भी बिल्कुल ये भी बात है, ये बात भी है। तो घर बनता है इज्जत के साथ और प्यार के साथ, जहाँ पर एहतराम होगा और प्यार होगा। ये दो एक दूसरे का, प्यार का मतलब है एक दूसरे का ख्याल रखना, उसे घर कहते हैं। और जहाँ पर नमूद व नुमाइश हो उसे मकान कहते हैं, जहाँ पर ठीक है। आज हम इससे बहरहाल भरपूर डिस्कशन करने वाले हैं इन द सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ में फिलहाल हम खबरें डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमारे साथ हमारी न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन मौजूद होंगी। तो हमारे यहाँ होता ये है, ये भी मैं बता दूं आपकी इजाज़त से खावर साहब, कि हमारे यहाँ होता ये है, आप भी रिलेट कर सकेंगे कि जैसे किसी की शादी आने वाली होती है, जैसे ईद आने वाली होती है, जैसे कोई ऐसा मौका आने वाला होता है, हम सोचते हैं आप फिट हो जाऊं, अब जो कपड़े पहनने हैं ना उसमें तो मैं बिल्कुल अमेजिंग लगूं। तो अब आपके पास 5 दिन रह गए अल्हम्दुलिल्लाह रफली ईद आने में। तो इन 5 दिनों में हमारी वो तमाम खवातीन जिनको अब ख्याल आया कि ओह पूरे रमजानुल मुबारक में तो पकौड़े बहुत खा लिए, अब 5 दिन में कोई रेसिपी हो सकती है, उनके हवाले से हम डिस्कशन करेंगे 9:30 से ऑनवर्ड्स अपनी डाइटिशियन के साथ। तो आपने हमारे साथ रहना है। आज की पहली खबर जो मैं आपसे शेयर करती हूँ, एक तो ये कि खुशियों की हम बात कर रहे हैं और खुशियों से शुरुआत करते हैं। वजीर आजम साहब की जानिब से टीम के हर खिलाड़ी के लिए 1 करोड़ का ऐलान, हमारी क्रिकेट टीम के लिए माशाअल्लाह। टीम ने चैंपियन बनकर कौम का सर फख्र से बुलंद किया, खिलाड़ी पजीराई के मुस्तहिक हैं मरियम औरंगजेब। ये एक हकीकत ये है कि एक बड़े लंबे अरसे के बाद कौमी क्रिकेट टीम की तरफ से एक बहुत ही अच्छी खबर, यानी ये हुआ कि ईद से पहले इन्होंने हमारी ईद करा दी और उनके लिए 1-1 करोड़ रुपए का इनाम ये हक बनता है। ये क्रिकेट टीम का CCI की तरफ से भी 23.5 करोड़ का इनाम अनाउंस किया गया है।
اور آرمی چیف نے بھی ہر کھلاڑی کو عمرہ کروانے کی ماشاءاللہ تو یہ ایک اچھی چیز ہے. بہت اچھی خبر ہے. اس سے کرکٹرز کے حوصلے بڑھیں گے. اور ساتھ ہی میں گزارش کروں کہ کرکٹ کی طرف ہمارے جتنا دھیان گیا ہے وہ تو اپنی جگہ درست ہے ہمارے یوتھ کا بھی, لیکن پاکستان کی جو قومی ہاکی وہ ہاکی ہے اور اس میں انفارچونیٹلی ہم ہارے ہیں ابھی انہیں دنوں میں جب کرکٹ میں فتح یاب ہوئے. اور لیکن قومی کرکٹ ٹیم جو ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے اس کی طرف اتنی توجہ دینے کی ضرورت ہے جتنی ہم کرکٹ کی طرف ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات آپ کی درست ہے, کیونکہ جب ہم کرکٹ میں جیت رہے تھے تب ہم انڈیا سے ہی ہاکی میں ہار رہے تھے. اور ایک اور چیز ہے, ایک خوش آئین بات مجھے لگتی ہے کہ لوگوں نے بہت سی چیزیں سمجھنا اور لرن کرنا شروع کیا ہے. میں نے سوشل میڈیا پہ بے انتہا ویڈیوز دیکھی ہیں انڈیا کی جانب سے بھی, یعنی وہاں کے لوگوں کی جانب سے, جیسے عوام ہماری آپ کی طرح ہے وہاں پر, اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو اتنا انڈر ایسٹیمیٹ کیا گیا تھا پہلے, اور پاکستان کو جب ان کے نیوز چینلز میں, بھارت کے نیوز چینلز میں ہمارے کسی بھی ریپرزینٹیو کو جب آن ایئر لیا جاتا تھا تو ان کی بہت بیشنگ کی جاتی تھی, صبح میں بہت برا بھلا کہا جاتا تھا, اور کہنے والے نے یہ کہا کہ ہمیں انڈینز ہونے کے باوجود بہت برا لگتا تھا کہ کیوں کر رہے ہیں ایسا, اور یہی ان کا اوور کانفیڈنس تھا, یہی ان کی بدتمیزی تھی, تکبر تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا. اور وہ کہتے ہیں انڈین سائڈ پہ بھی لوگوں نے کہا کہ ہمیں بہت دکھ ہوا اس وقت جب ہماری ٹیم ہاری, لیکن بعد میں ہمیں اس بات کی خوشی ہوئی کہ ہمیں اتنا اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے, اور اب یہ سبق ہمارے میڈیا نے سیکھ لیا ہے. اور وراٹ کوہلی کے کتنے اچھے اچھے تعلقات ہیں ہمارے کرکٹرز کے ساتھ, وہ اپنی جگہ, اس کے ویڈیوز بھی بہت وائرل ہوئے ہیں. یہ بات بھی صحیح ہے. تھوڑا یہ جو ہوتے ہیں, یہ جو صحافی ہوتے ہیں, یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں, یہ قوم کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. لہذا ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ملک میں بھی اور اپنے ملک سے باہر جانے بھی, کیونکہ ان کی کوئی پرائیویٹ لائف نہیں ہوتی ہے, ان کی ریلیٹڈ ہوتی ہے قوم کے ساتھ, نیشن کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ. تو تھوڑا اٹھنے بیٹھنے میں بھی تھوڑا ان حدود کو پار نہ کریں جہاں پر کوئی ہماری طرف انگلی اٹھا دے. اور اتنے اور مطلب یہ اب جب سے انڈیا پاکستان کا کیونکہ فائنل میچ ہوا ہے تو اتنی چیزیں جو شاید ہم بھول بھی گئے تھے کہ وراٹ کوہلی نے اپنا فیوریٹ بیٹ جو ہے وہ محمد عامر کو دیا تھا, اور اس کی بھی ویڈیوز ایسے ہیں. دیر آر سو مینی ایموشنل مومنٹس, اور اینڈ میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ دس از اے گیم, کیپ اٹ اے گیم اونلی. یہ کوئی وار نہیں ہے, اور اس کو ہر دفعہ وار کی فیلنگ, اگر وار ہونی چاہیے تو ایسی ہونی چاہیے, وار بھی ہے تو اسی کو اس طریقے کی ہونی چاہیے. مطلب ایک اور انٹرویو میں دیکھ رہی تھی انڈین کیپٹن کا ہی, دونوں ملکوں کو چاہیے کہ غربت کے خلاف جنگ کریں. ہاں بالکل بالکل. دونوں ملکوں کے چاہیے کہ جہالت کے خلاف جنگ کریں. دونوں ملکوں کے چاہیے کہ تشدد کے خلاف جنگ کریں. دونوں ملکوں کو چاہیے کہ جو کلنگس کے خلاف جنگ کریں, مل کے جنگ کریں نا. ہم لوگ ایک ہی خطے کے باسی ہیں, اور جو پڑوسی ہوتے ہیں وہ بدلا نہیں جا سکتے. یہ بات آپ کی بڑی خوبصورت ہے, اور اسی بات کو کرکٹ ٹیم نے دونوں طرفہ کچھ ایسی بھی باتیں ہوئی کہ جی اگر آپ چینجنگ روم کا ماحول دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں اور آپ مسکرا اٹھیں. اس لیے جب پوچھا گیا تو وجہ یہی بتائی گئی کہ اس لیے کیونکہ وہاں پر اتنا ہنسی مذاق ہو رہا ہوتا ہے, ہم ایک دوسرے کی بات سے, زبان سے ریلیٹ کر سکتے ہیں, تو بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے. ہاں بالکل ظاہر, یہاں ڈیلیگیٹس آتے ہیں, شعرا آتے ہیں, ادیب آتے ہیں, جب ہم بیچتے ہیں تو ہمارے مسائل ایک جیسے ہوتے ہیں, ہماری جو سوچنے کا انداز ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے, ہمارے فیلنگس احساسات سارے ایک جیسے ہوتے ہیں. لہٰذا یہ ان کو چاہیے مودی سرکار کو کہ وہ جو ان کا کثر بنا ہے اس سے نکل کے آئے اور ایک محبت کے ماحول کو فروغ دیں. اور یہ جا کر کے وہاں پہ کھیل سکتے ہیں, لندن میں جا کر کے کھیل سکتے ہیں, یہ کراچی میں آ کر کے کیوں نہیں کھیلتے؟ نیو دہلی میں جا کر کے ہم تو تیار ہیں کھیلنے کے لیے, ہم تو پاکستان نے تو کبھی انکار نہیں کیا ہے. اس طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم آگے ہیں. دبئی میں کھیل سکتے ہیں, لندن میں کھیل سکتے ہیں, کراچی میں یا لاہور میں. اب لگتا ہے انٹرنیشنل کرکٹ واپس آنے کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں. نہیں, ہو چکے ہیں. اچھا, ویسے تو ہم یہ ایسی خوشی ہے الحمدللہ کہ اس پہ پورے 2 گھنٹے بھی بات کرتے رہیں گے, تو میرے خیال میں نہ آپ کی باتیں ختم ہونے والی ہیں نہ میری باتیں ختم ہونے والی ہیں. لیکن ہمارے ساتھ اس وقت کالر ہے یحییٰ صاحب کی, بڑی امپورٹنٹ کال ہوتی ہے, بڑا مزہ آتا ہے, ان سے ہم بات بھی کر لیتے ہیں, پھر اگلی خبر شامل کریں گے اور پھر میں آپ سے نعت بھی سنوں گی. السلام علیکم یحییٰ صاحب.
वालेकुम सलाम नुसरत, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, आप साहब की सलाम हो और हमारी बहन बैठी हुई इनको भी सलाम हो। आपने बात की स्टार्ट की, मुझे भी खैर बहुत अच्छा लगता है नुसरत आपसे बात करने करके, क्योंकि एक आप जब स्टार्ट लेती हैं तो बहुत अच्छी कोई ना कोई ऐसी गुफ्तगू करती हैं जिससे किसी न कुछ आदमी को मैसेज करने जरूर होता है। तो कानूनी बात हमेशा इंसान को करनी चाहिए। मेरा कहना ये कि देखिए, आपने जो बात की ना, दिलों में जो मोहब्बत है आजकल जो हो गया है ना, वो खामोश साहब ने बिल्कुल सही कहा। थोड़ा सा ऊंचा बोलिए यार साहब, मुझे आपकी आवाज सही समझ नहीं आ रही। जी जी जी, मैं कह रहा था खासन बिल्कुल सही था कि आजकल के दौर के अंदर जो है ना, बड़े बड़े घर तो हो गए लेकिन दिलों में मोहब्बतें कम हो गई हैं। और वो जो है, जो बाकी जो छोटे घर होते हैं उसमें लोगों को आपस में करीब रहने का ज्यादा मौका मिलता है, शायद वो ज्यादा कम्युनिकेट कर पाते हैं, वरना बड़े घरों में शायद हो सकता है कि वो सेल फोन के थ्रू रब्ता करते हो। तो जो एक जरूरत है, हमें अपने बच्चों को ये समझाने की जरूरत है कि अपने बच्चों में आपस में एक दूसरे से मिल के बैठ के बात करने की, कम्युनिकेट करने की जरूरत है और एहसास दिलाना चाहिए रिश्तों का, सबसे बड़ी बात ये बात। अच्छा, दूसरी बात मैं मुझसे भी कहूँगा, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि क्रिकेट पे हम बहुत तवज्जो देते हैं, हमारा कौमी खेल जिसको हमने बिल्कुल ही पसे पुश डाल दिया, उस पर भी तवज्जो नहीं चाहिए। दूसरा ये कि मैं कहता हूँ कि आपने जैसे मीडिया की बात की ना, तो इंडियन मीडिया ने क्रिकेट के हवाले से हमारी बहस की, तो हमने जहाँ शिकस्त दी है उनको इस क्रिकेट में, तो हमें चाहिए हम इश्तिहारात में शिकस्त दें। हमारे पास इतना टैलेंट है, हमारे पास इतने लोग हैं कि हमारे शायद गाय के सोप के इश्तिहार में काम करने वहाँ पर बंदे हैं, तो हमें चाहिए इंडियन इश्तिहारों में अपने उन लोगों को रखने के बजाय अपने इश्तिहार बनाए और उसमें भी उसको शिकस्त दें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। एंड वी हैव अनदर कॉलर। अस्सलाम वालेकुम गुलाम रसूल साहब। गुलाम रसूल। वालेकुम सलाम मैडम साहबा, क्या हाल है जी? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। और फिर ठीक है जी, सब खैरियत है जी, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा टॉपिक से अक्सर बात करूंगा, अगर आप माइंड ना करें तो मैच के हवाले से करूंगा। मैच के हवाले से? जी जी, हाँ, तो टॉपिक अभी तो नहीं शुरू कर रहे थे, इस पर बुरा नहीं मनाऊंगी, बताइए। जी, तो अब देखिए ना, मैं गुज़श्ता जो है ना वो 15-20 साल से मैच देख रहा हूँ। तो जब भी पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्टेस्ट होता है ना जी, तो हमारा मीडिया और इंडिया का जो मीडिया है आपस में वो टाकरा लगाते हैं रात को। तो उसमें हमारा मीडिया जो है उन पर हावी होता है, हमें नजर आता है। नहीं भाई, हमारे लोग नहीं बोलते हैं इस तरह, इसको तो मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकती। गुलाम रसूल साहब, थैंक यू सो मच, आपने इनपुट दिया। सारा दुख ही यही है। साहब वहाँ के इंडियन चैनल देखते नहीं। हाँ, इंडियन ज्यादा अग्रेसिव है। एग्रेसिव नहीं है, वो बदतमीजी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो मैंने देखे हैं ना, इतने अल्फाज, रफ्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं कि सुनने वाले कुछ और देखने वाले को शर्म आती है कि किस तरीके से बोल रहा है, क्योंकि ये चैनल तो घरों में भी देखे जा रहे होते हैं। आपको मैं एक बात बताऊँ, एक शो हुआ था जिसमें उन्होंने पाकिस्तान से शोएब अख्तर को लाइन पे लिया था और वहाँ के इंडियन जर्नलिस्ट जो थे उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे बच्चों की तरह है और ये वो कि हम हरा देंगे। हराने की हवाले से उन्होंने बात की, अच्छी बातें नहीं की, तो मैं एज कोर्ट टू कोर्ट नहीं बता रही हूँ। उस पे शोएब अख्तर ने बहुत कंपोज होकर जवाब दिया कि मैं समझता हूँ मैच अच्छा होना चाहिए। सही बात, गेम अच्छा होना चाहिए। वो घर भी जाना था ना। वो ये चीज मेंटेन होती रही। तो ये है कि हम लोगों की तरफ से स्टांस इतना बुरा नहीं, हमारे जो कितने भी हार्ड किस्म की हमारे शो, लेकिन उसमें अखलाक को मालूम से खाते रखा जाता है। अच्छा, क्योंकि हमारा टाइम बिल्कुल इसी में खत्म हो रहा है, मुझे बताया जा रहा है, तो मैं जल्दी से चाहती हूँ कि इस पे भी आप 2 लाइन जरूर बता दीजिए, क्योंकि आज की बहुत अहम खबर है। बाजोर मोहम्मद और खैबर एजेंसियों में अफगान बॉर्डर पर बाढ़ लगानी शुरू कर दी। बहुत बहुत अच्छा, क्योंकि हमें ये शिकायत रही है कि अफगानिस्तान में जो छुपे हुए दहशतगर्द हैं वो वहाँ से आते हैं और यहाँ पर तकरीबी कार्रवाइयाँ करके फिर अफगानिस्तान चले जाते हैं। ठीक है। और हमारे जो बॉर्डर्स एरिया में पासपोर्ट का सिस्टम खत्म हो चुका है, जिसको जी चाहे चलाए या चला जाए, लिहाजा ये एक अरसे से जो जितनी दहशतगर्दी हो रही थी उसको कंट्रोल करने के लिए ये सिलसिला शुरू किया गया है। पहले से ये केटीके की तरफ से, उस तरफ से पाटा की तरफ से होगा, फिर ये बलूचिस्तान की तरफ भी जाएगा, बाढ़ भी लगाई जाएगी और किले नुमा दीवारें भी तामीर की जाएंगी, ताकि कोई भी दहशतगर्द या कोई भी मुल्क दुश्मन सरहद पार से आकर के यहाँ पर तकरीबी कार्रवाई न कर सके। सही। और इसके साथ ही, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, जैसे कि मैंने बताया, हम आपसे इरम नाथ की गुजारिश करेंगे।
सिदरा हुजूर जानते हैं हुदूद ताईरे सिदरा हुजूर जानते हैं कहाँ है अर्श मुअल्ला हुजूर जानते हैं कहाँ है अर्श मुअल्ला हुजूर जानते हैं उन्हें खबर कहीं से पढ़ो दुरूद उन पर उन्हें खबर कहीं से पढ़ो दुरूद उन पर तमाम दहर का नक्शा हुजूर जानते हैं तमाम दहर का नक्शा हुजूर जानते हैं बरोज़ हश्र शफ़ाअत करेंगे चुन चुन कर बरोज़ हश्र शफ़ाअत करेंगे चुन चुन कर हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की तशरीफ आवरी का आपके वक्त का यहाँ पर एक ब्रेक आ गया है ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो हमारे साथ हमारी डाइटिशियन मौजूद होंगी और हम जो 5 दिन का टारगेट है जो हमें अचीव करना है और ईद पे जो हम बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं ये तमाम चीज़ें हमें डिस्कस करनी है आफ्टर द ब्रेक और चैनल 5 अब आपके स्मार्टफोन पर खबरें और चैनल 5 की मोबाइल एप्लीकेशन से रखिए खुद को हर लम्हा बाखबर खबर उनकी हो या महफूज की या फिर खेल के मैदान से सारा दिन प्रैक्टिस से सब मुकाबले दुनिया भर के टूर इसमें वक्त तय करना खबरें और चैनल 5 की मोबाइल एप्लीकेशन रहे हर वक्त उनके साथ जो रखती है रोजनामा खबरें और चैनल 5 पर नजर
हालात की खबर रखना मेरा काम। खूबसूरत नफेस के साथ खबर का अंदाज रोजनामा खबरें और चैनल 5 के बाद दिन भर शूटिंग में मशरूफ और हालात हाजरा पर भी नजर रखना जरूरी। पल पल बदलते हालात से बाखबर रहना आपकी जरूरत। खिदमत पूरी करती है खबरें की मोबाइल ऐप जो मेरे फोन में हर वक्त मौजूद रहती है और सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर खबरें की मोबाइल ऐप डाउनलोड करके मैं रहूंगी हर वक्त। खबरें हर वक्त बाखबर। वेलकम बैक। और डॉक्टर अरीज हारून इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हमारी न्यूट्रिशनिस्ट। और जो हमने बात की है, अस्सलाम वालेकुम अरीज, कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक है, अल्लाह का शुक्र। और जो हमने बात की, मैंने इंट्रोडक्शन में भी आज बता दिया था कि जब हम बिल्कुल 11th आवर पे होते हैं ना, तो हमें समझ आता है कि अरे अब कुछ करना है, अब जो मेरे इतने प्यारे प्यारे जोड़े हैं वो मुझे पहनने हैं, तो मुझे फिट नजर आ रहा है, सबसे मिलना है तो पता चलना चाहिए रोजे रखें, पता चलना चाहिए कि रोजे रखें। तो आपकी ये जो स्मार्टनेस है और 5 दिन का टारगेट है, पहले तो मुझे बताओ कि 5 दिन में क्या तब्दीली आ सकती है? देखो 5 days में अगर थोड़ा सा सेंसिबली ईट करें ना तो अप टू 3 kgs आप लूज कर सकते हो। कैसे? बस बात वही है ना कि आपने पकोड़े समोसे खाए हुए हैं, जो आपने चढ़ाया वो आप उतार सकते हो अगर आप वो चीजें कट डाउन कर दो। ओके। सबसे इजी होता है प्रोटीन डाइट जो हम लोग खाते भी, क्योंकि हम तो गोश्त खो रहे हैं, ज्यादा खाते हैं, मटन बीफ भी खाते हैं, चिकन भी बहुत खाते हैं, तो बहुत इजीली हम लोग अगर उस पे जाएं और ये पकोड़े समोसे बिल्कुल आंखें बंद कर लें, उनको देखें, उनसे बंद कर लें, फ्राइड आइटम सारे बंद कर लें अगर 5 दिन तक। आज से हम तहैया कर लें कि फ्राइड आइटम से फ्रूट का एक बोल लेना है, ओके, और अपना चिकन का पीस खाना है या मटन का पीस खाना है, ओके, खाना है। दही का इस्तेमाल ज्यादा करें, ठीक है। पानी जो कि हम नहीं पीते, और सारी में भी हम लोग शरबत और सारी चीजें पी लेते, पानी या उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट अगर नेचुरल जो डाला होता है वो नहीं पीते, वो पिए। और गर्म पानी पिए तो लेमन स्क्वीज करके आपका फैट बर्न स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, और शहरी में, शहरी का भी आपने बताना है, पता चले इफ्तार इतनी लाइट की है तो लोग कहें नहीं शहरी में तो पराठा होगा और फिर 5 दिन बाद 3 kg वेट लूज तो नहीं हो सकता। शहरी में पराठा, सालन, ये चीजें नहीं खानी होती। उसमें फिर दलिया है, एग्स हैं, बॉइल्ड एग्स ले लें आप, दलिया ले लें, ओटमील बना लें, कोई भी सीरियल ले लें, दूध का इस्तेमाल कर लें। अगर ज्यादा है, किसी को बहुत ज्यादा भूख लगती है तो बेहतर है कि स्मूदी बना ले फ्रूट की, वो है फिलिंग होती है, तो इस तरह की चीजें करें। 3 kg आराम से जाता है, आराम से चल जाएगा। और इंचेस में कितना फर्क आएगा? इंचेस में डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी टाइप कैसी है, ठीक है। अगर कुछ लोगों की जैसे बहुत स्टबन फैट होता है तो वो कोई 1/2 इंच का कुछ डिफरेंस, लेकिन ये कि विजिबल होता है ना कि फेस आपका और ये शोल्डर, ये बड़ा जल्दी नजर आता है। ओके, ठीक है, हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अब्दुल गफ्फार अटक से बोल रहे हैं। जी जी, अब्दुल गफ्फार साहब फरमाइए। जी जी, शहर में कम से कम खाना चाहिए, दिल आसानी से बढ़ जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने मशवरा देना है या आपने सवाल करना है? अच्छा, सवाल मैच की बात है तो सर बोल रहे थे मैच की बात नहीं करना, किसकी बात तो सारी जिंदगी ये हाल याद रहेगी, सारी जिंदगी। अच्छा अच्छा, एक्चुअली मैच पे काफी बात कर ली थी ना इस वजह से, लेकिन ये है कि आपकी खुशी है और आपने कहा कि ये खुशी आपको हमेशा जिंदगी भर याद रहेगी, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया हमें, लेकिन वो हम शुरू में कर चुके हैं। तो अब हम चाहते हैं कि हमारी वो दोस्तें, वो लोग जो वेट लॉस करना चाहते हैं या अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं, 5 दिन का टारगेट है, इसमें जल्दी जल्दी कर सकते हैं। अगर 3 kg अगर लूज हो जाएगा तो फिर उसमें कमजोरी नहीं होगी? नहीं, कमजोरी नहीं, बिकॉज आप न्यूट्रिशन तो पूरी ले रहे हो, आप पानी भी पूरा पी रहे हो, प्रोटीन इनटेक अच्छा, दही खा रहे हो, खजूरें खा रहे हो, आपने बेसिकली फ्राइड आइटम्स निकाले, जो अगर हम पहले दिन से निकाल लेते तो काफी फर्क पड़ जाता। इन कॉलर ने कहा कि शहरी हमें थोड़ी कम करनी चाहिए। हम लोग जो एडवाइस करते हैं ना कि शहरी आप अच्छी करें, बिकॉज आप बर्न आउट कर लेते हैं पूरा। और इफ्तारी जो है वो आप थोड़ी सी ऐसी करें जिसमें आपकी फिलिंग हो, आपको एनर्जी अच्छा मिले, बूस्ट अच्छी मिले। ये जो चीजें आपकी स्क्रीन पे दिखाई गई
ये इसलिए दिखाई गई कि आप इनको खाइए और वेट लूज कीजिए। फ्रूट्स दिखाए गए, बीन्स दिखाए गए, तो ये सब आप खा सकते हैं। काले चने, और लोबिया है, ये हमारे जो बीन्स बहुत अच्छे होते हैं, इनकी चाट बना के खाएं। लेकिन इनकी चाट बना के खाएं। मुझे एक और बात बताएं, सफेद चने भी लोग बहुत खाते हैं, लेकिन डाइट के लिए कहा जाता है कि काले खाएं, क्यों? उसकी वजह ये कि उसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा है। अच्छा। कैलोरी काउंटिंग अगर आप कंपेयर करें तो जैसे इवन कहते हैं कि तो अगर आप व्हाइट राइस लेते हैं या ब्राउन राइस लेते हैं, उनमें कैलोरी काउंटिंग में इतना डिफरेंस नहीं है, बहुत 50 कैलोरीज या कुछ का डिफरेंस होता है। लेकिन फाइबर की वजह से ना, क्योंकि फाइबर कंटेंट उनका ज्यादा होता है, तो वो स्टोर नहीं होते, वो निकल जाते हैं। अच्छा। तो आपको इसीलिए जो है, अगर आपको वो कहते हैं कि काले चने खाएं, तो उनमें ये कि आपका फाइबर कंटेंट ज्यादा है, आप खाएंगे तो आपको फिलिंग भी हो जाएगा, और फिर ये कि आपने उससे सिर्फ न्यूट्रिशन ले ली, बाकी निकल गया। तो व्हाइट चने खाएंगे तो कैलोरी सारी स्टोर ही होंगी जाके। अच्छा, ये वजह है। व्हाइट चीजें जरा कम, सिर्फ दही और दूध व्हाइट बनानी है। अच्छा। बाकी चीजें जैसे व्हाइट चीनी है, चिकन भी तो व्हाइट ही होती है। चिकन अब आजकल तो चिकन के ऊपर भी बड़ी डिबेट स्टार्ट हो गई है कि चिकन नहीं खानी चाहिए, उसके से वेट, बल्कि एक डाइट स्टार्ट हुई है जिसमें आप चिकन नहीं खाते, यू स्टार्ट लूजिंग वेट। हाँ। तो आप ये भी कर सकते हैं, मटन खाएं, फिश खाएं, ओके, बीफ खाएं, और वो भी थोड़ा थोड़ा खाएं, बहुत ना खाएं, वरना कोई फायदा नहीं होता उसका भी, वो भी फैट बन सकता है। मैं हमेशा कहती हूँ दही, बिकॉज दही का जो है ना, आपके नेचुरल, आपके गट में प्रोबायोटिक है, तो आपका अच्छा बैक्टीरिया ग्रो करेगा, आपको फिलिंग भी हो जाएगा, स्नैक है, क्योंकि लोगों का कॉन्सेप्ट है कि दही हल्का सा होता है, दही बहुत देर में डाइजेस्ट होता है। अच्छा। तो उसकी प्रोटीन हैवी होती है। आप दही और चने कुछ मिक्सचर करके इसका बना सकते हैं, बड़े मजे का, और वो खा सकते हैं। जैसे होती है, जो खाते हैं लोग। हाँ, हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी फरमाइए। ये मैडम मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरा वजन है 80 kg। समझ नहीं आई, आपका वजन है? मेरा, मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा वजन है तकरीबन 80 किलो। ठीक है। तो कितना कम से कम कितना आदमी का वजन होना चाहिए सेहत के लिए? आप दिख तो रही हैं हमें, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपकी हाइट कितनी है। मेरी हाइट 6 फुट। हाँ, तो 6 फुट में आपको किसी ने मोटा तो कहा नहीं होगा आज तक। नहीं कहा। हाँ, तो आपने तारीफ सुनने के लिए फोन किया था, ये लगा मुझे। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। वैसे आपको खुद भी पता है कि आप क्या कोई इतना ज्यादा वजन नहीं है, लेकिन फिर भी चले आप बता दें, उनको एक कंफर्मेशन चाहिए होगी। कंफर्मेशन भी, और कभी कभी ये होता है कि जो लीन टॉल मेल्स होते हैं उनका वैसे ओवरऑल फैट नहीं होता, लेकिन एब्डोमिनल फैट होता है। अच्छा। तो वेट होता है उसका, दूसरे का वेट इतना ज्यादा ना आता है उनकी स्केल पे, लेकिन एब्डोमिनल फैट होगा तो वो विजिबल होता है। ठीक है। है। और वो अनकंफर्टेबल होते होंगे जब कपड़े। अच्छा, चलिए वो मेल्स, वो हमारे भाई जो इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि इनकी कॉल भी आई है और आपने कहा कि उनमें टॉल लोग होते हैं तो और भी मसला नहीं होता, सिर्फ पेट का प्रॉब्लम होता है कि पेट बढ़ जाता है, काम करते हैं। हाँ, तो अगर 5 दिन में उनको भी अपना पेट कम करना हो तो वो कर सकते हैं। कर सकते, लेकिन आदमियों के लिए तो बड़ा इजी है, तो कुकिंग नहीं करनी पड़ती। हाँ, ठीक है, उनको टेंशन नहीं कि मैं अपने लिए अलग से कुछ बनाऊंगा, वो बना के रख देगा। सेकेंडली, उनके खाते ही ज्यादा मीट है। प्रोटीन डाइट अगर आप करते हैं तो यू लूज मोर वेट। ठीक है, प्रोटीन डाइट के साइड इफेक्ट भी हैं, लेकिन अगर लॉन्ग रन, अगर आप बहुत ओवर यूज कर लो, अच्छा, आप अगर उसको फ्रूट्स के साथ, दही, सैलेड के साथ आप ऑल्टरनेट करते रहेंगे तो नहीं होगा इशू। ओके, आप बैलेंस कर रहे हैं। अगर आप कंटिन्यूसली सिर्फ प्रोटीन ही खा रहे हो, कुछ खा ही नहीं रहे, तो फिर तो वैसे ही रहता है कि आप। अच्छा, अगर आप वैसे भी, मैं आपके यहाँ मौजूदगी का फायदा उठाऊं कि वैसे भी आम दिनों में, रमजान के बाद भी आप प्रोटीन डाइट, मतलब प्रोटीन डाइट इस तरह से करेंगे, प्रोटीन आप खा रहे हैं, दही आप ले रहे हैं, मेजर कंटेंट उसका रख लें, फिर थोड़ा डेयरी का पोर्शन होना चाहिए, थोड़ा सैलेड होनी चाहिए। ठीक है, आपने प्लेट और कार्ब्स यानी रोटी चावल अगर बिल्कुल खत्म कर दें 1 महीने तक, और ये जो आप बता रही हैं कि दही होना चाहिए, चिकन, मीट, फिश होनी चाहिए, इस तरह का सैलेड बोल होना चाहिए, इस तरह की सब्जियां होनी चाहिए, तो ये चीजें अगर आप खा लेते हैं तो 1 महीने में कितना वेट लॉस हो सकता है? देखिए, महीने में तो हेल्दी वेट लॉस इज 5 to 6 kgs, विच इज 11 pounds। ओके, इससे ज्यादा हेल्दी वेट लॉस नहीं है। ठीक है, वैसे सही है ये, क्योंकि बड़ा रोड होके जो है ना 1 to 2 kg जाता है मेरे ख्याल में, उसमें क्योंकि चीटिंग बहुत दफा हो चीटिंग हो जाती है और हेल्दी के खाने भी है। कॉन्सेप्ट ये कि जैसे आपने इन्होंने वेट लूज किया इससे, अब वो अगर छोड़ देंगे तो वापस आ जाएगा। हमने वेट वो लूज करना होता है जो वापस ना आए। हाँ, तो वो जो 1 to 2 kg पर मंथ जा रहा होता है, दैट इज लास्टिंग स्टेबल वेट होगा हमारा। ओके, तो वो जाएगा तो अच्छा है।
अभी क्योंकि ईद इतनी करीब है तो हमने बस क्विक वेट यूज करना है. ठीक है, यूज करके ये कर सकते हैं कि आप ईद के बाद भी अगर कंटिन्यू रखें तो वो स्टेबल रहेगा. अच्छा, ये जो हमने बात की थी कि वेस्ट लाइन या पेट बढ़ जाता है, और हमने मेल्स के हवाले से बात की, फीमेल के हवाले से भी हमने बात कर लेते हैं, क्योंकि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में ऑब्वियसली आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकता है. तो अगर आपको इतने दिनों में अपने बेली फैट को या बेली को टोन करना हो तो क्या करें? सबसे बेस्ट होता है गरम ग्रीन टी, गर्म पानी में गर्म पानी. अदरक बहुत अच्छी है इस चीज के लिए, लेमन ग्रास बहुत अच्छी है, इसका इस्तेमाल करें. अगर किसी को एलर्जी है, कुछ लोग लेमन ग्रास नहीं पी सकते, उनको वैसे होता नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को कॉन्सेप्ट है कि हम लोगों को गला खराब हो जाता है तो साइकोलॉजिकली पी नहीं सकते. तो मिंट है, अदरक है, ये पिए, इसका कावा बना के पिए. तो बस अपनी अदरक जो है ना वो आपकी डाइजेशन को अच्छा करती है और मिंट सूट करती है. अच्छा, और अगर कुछ भी नहीं कर सकते ना, इन्होंने बात अच्छी की कि गर्म पानी पी लें, क्योंकि चाइना वगैरह में गर्म पानी पिया जाता है. अच्छा, गर्म पानी, वही इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने एक दफा एक जगह जिक्र किया तो उन्होंने कहा गर्म पानी यानी रूम टेम्परेचर ना, उसको गर्म समझते हैं हम. नहीं, गर्म पानी जो जैसे चाय वाला पानी होता है, थोड़ा सा मतलब कितना गर्म हो कि आप पी सकें उसको आराम से. जैसे हम ग्रीन टी बना के रखते हो फिर पीते हैं तो वो अच्छी रहती है. जैसे चाय जितनी गर्म आप पी लेते हैं उतना गर्म पानी होना चाहिए. बिल्कुल उतना गर्म होना चाहिए, ताकि उसको आप बेसिक जाता है हमारी बॉडी में तो टेम्परेचर एडजस्ट करता है. अगर बहुत ठंडा पानी पियेंगे तो हम शॉक में जाते हैं, वो कहते हैं ना ठंडा चीज ब्रेन फ्रीज हो जाती है. अगर बहुत कोल्ड कोई चीज लेते हैं, आप नॉर्मल पियेंगे जाएगा, उसको मेटाबोलाइज करने में भी कैलोरीज और बड़ा हल्का भी महसूस होता है. ये बड़ा ही अच्छा है. लोग सोचते पानी में कुछ नहीं, पानी को सोचे पानी को बर्न करने में भी कैलोरीज यूज होती है. हालांकि पानी हम सोचते कोई कुछ नहीं है पानी में, लेकिन जब आप उसको बर्न करते हैं, बिकॉज अगर आप अपने उसमें 250 ml यानी कि जो छोटी बोतल आती है, अगर आप वो पीते हैं तो आप अपनी जो है अपना जो बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, फैट बढ़ने का जो प्रोसेस है वो 25% बढ़ा लेते हैं. अच्छा, तो आप सोचते हैं कि जितना पानी पियेंगे उतना फायदा होगा. कॉलर है हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी. जी वालेकुम सलाम जी. जी जी, आवाज आ गई आपकी. मैंने ये अर्ज करनी है कि मेरा जो है वो खाने के बाद ना पेट जो है वो ऐसे महसूस होता है कि आंखें जो है वो सख्त हो गई हैं, तो आंखें सख्त महसूस होता है. समझ आ गई आपने? भी समझ नहीं आएगी. आंखों में स्वेलिंग हो जाती है. आंखों में अच्छा, आंखों में स्वेलिंग, आंखों में स्वेलिंग हो जाती है, आंखों में स्वेलिंग हो जाती है. कुछ सवाल आंखों में. अच्छा, हाथों में, आंखों में, आंखों में ना, मैं सही समझ रही हूँ. सब मुझे गलत बता रहे हैं जब से. तो पेट में ठीक है. आपको कैसे पता कि हाथों में स्वेलिंग हो गई? ये आपको कैसे पता? ऑन एयर बताते हैं. ये इतना, कुछ लोग होते हैं जिनको छोटी बीमारी ना मजे की नहीं लगती, तो वो बड़ी बीमारी ये हुआ है. ये सेल्फ डायग्नोसिस है. कितना सही है इसके बारे में बताएंगी अरीज हमें इस ब्रेक के बाद. और चैनल 5 अब आपके स्मार्टफोन पर. खबरें और चैनल 5 की मोबाइल एप्लीकेशन से रखिए खुद को हर लम्हा बाखबर. खबर उनकी हो या गैर उनकी, या फिर खेल के मैदान से. सारा दिन प्रैक्टिस, फिर सख्त मुकाबले, दुनिया भर के खबरें और चैनल 5 की मोबाइल एप्लीकेशन रहे हर वक्त उनके साथ, जो रखती है रोजनामा खबरें और चैनल 5 पर. खूबसूरत नक्शे के साथ खबर का अंदाज, रोजनामा खबरें और चैनल 5 के बाद. दिन भर शूटिंग में मसरूफ और हालात हाजरा पर भी नजर रखना जरूरी. पल पल बदलते हालात से बाखबर रहना आपकी जरूरत. ये जरूरत पूरी करती है खबरें ग्रुप की मोबाइल ऐप, जो मेरे फोन में हर वक्त मौजूद रहती है. सिर्फ एक क्लिक की पूरी करती. खबरें की मोबाइल ऐप डाउनलोड करके खबरें हर वक्त बाखबर.
वेलकम बैक। हमारे साथ अरीज मौजूद है, हमारी न्यूट्रिशनिस्ट, और आज आपको काफी मशवरे दे रही है। एक कॉलर है अबू बकर साहब, उसके बाद वो आंतों की स्वेलिंग वाला जवाब भी आपने देना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है अबू बकर साहब? जी अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो आप बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। तो चले माशाल्लाह। तो हाँ, एक्चुअली मेरा डॉक्टर साहब से ये क्वेश्चन है कि मेरी जो हाइट है वो 6 फीट है, लेकिन और मेरा वेट जो है वो 85 है। एक तो मैं वेट को रिड्यूस करना चाहता हूँ, दूसरा एक जो फेस कट है ना वो मुझे क्लियर चाहिए। मुझे आई डोंट वांट टू बी फेस जो है ना वो मेरा है, तो मैं फेस कट को क्लियर करना चाहता हूँ। क्या मतलब? क्या करना? फेस आपका चबी है, फेस थोड़ा भरा हुआ है, आप पतला करना चाहते हैं? जी, फेस कट को क्लियर करना चाहता हूँ और वेट थोड़ा रिड्यूस करना चाहता हूँ। मैं वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, ऑन एयर बात करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का फेस होता ही ऐसा है कि वो जितना भी वेट लूज कर ले वो फेस बोन स्ट्रक्चर ऐसा, हाँ बोन स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि फेस कम नहीं होता। कुछ लोगों का, वो हम जैसे लोग होते हैं कि जिनका जरा वेट लूज होना शुरू होता है तो सबसे पहले चेहरे पे आ जाता है। हाँ, तो बोन स्ट्रक्चर का होता है। दूसरा ये कि फेस के लिए बहुत ईजी है कि आप कुछ बबल गम या कोई ऐसी चीज करें जिसमें चूइंग एक्सरसाइज हो जाए। अच्छा, बबल ये या च्युइंग गम अगर आप च्यू करते रहते हैं, आप चबाते हैं तो उससे मसल्स वर्क करते हैं, तो आपकी शेप आती है। क्योंकि फैट रिडक्शन लोग जो मसल्स की जो कहते हैं नेचुरल कंटूरिंग हो जाती है आपकी, वो करें। तकिए कितनी देर करें, कब करें? जितना ज्यादा करें, एटलीस्ट 20 मिनट्स आप रोज रात को गुस्से में करें, जितना गुस्सा ना उससे निकालें ताकि आपके मसल्स वर्क करें उसके। ओके, जो दूसरा बीवियों पे निकलता है वो बबल गम पे निकाले। जिसका गुस्सा है हमें वैसे ही उसको सोच के आप हाँ च्युइंग गम जो है वो चबाएं, और एक ये गुस्सा भी निकल जाएगा और फेस भी प्यारा हो जाएगा, अंदर से भी दिल साफ हो जाएगा। वाह, एक च्युइंग गम के कितने फायदे। ओके, तो दूसरा ये कि तकिए के बगैर सोएं। तकिए के बगैर सोएं, उससे आपकी नेक की जो है ना शेप आती है। वाकई? हाँ, तो वो कोई नुकसान भी नहीं है किसी तरह? नहीं, अगर आपने अपनी नेक को पतला करना है और डबल चिन रिड्यूस करनी है तो उसके लिए बेस्ट है कि आप तकिए के बगैर सोएं, या फिर आप जो नेक पिलोज होते हैं ना सिर्फ नेक को सपोर्ट करने के लिए, ताकि आपका सर नहीं एलिवेट हो। अच्छा, चलें जी, ये तो इन्होंने वैसे, लेकिन अगर किसी को कोई कंडीशन है, जैसे किसी को चक्कर आते हैं, कुछ वो ना करें। ये तो हम डाइट के हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं, ये हम बता रहे हैं। अगर आप कर सकें तो कर लें। मैं तो इमेजिन कर रही हूँ तो मुझे नींद ही नहीं आ रही है सोच के। नहीं, आदत पड़ जाती है। अच्छा, आप तो खूबसूरती के लिए लोग पता नहीं क्या क्या। आपने कभी ट्राई किया है? पतला या नैरो तकिया रखी है, बिल्कुल फेदर्स वाला, या फिर ओह माय गॉड, नहीं तो गर्दन में दर्द हो जाता है उससे। मुझसे कर लेते हैं लोग। आप सोचिए कि क्या क्या जतन करते हैं पतले और खूबसूरत होने के लिए। सीरियसली। चलिए फिर, अब ये मेरे लिए मोटिवेशन होगी, क्योंकि हर थोड़े दिन में मुझे थोड़ा मोटा पिलो चाहिए होता है, और हर थोड़े दिन में वो क्योंकि पिचक जाते हैं तो फिर मैं जाके एक नया लेकर आती हूँ। तो अब वो जो पुराने जितने भी पिचके में हैं उनको ट्राई करने की कोशिश करते हैं। ओके, हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, कौन है हमारे साथ? खुदाबाद बोल रहा हूँ। जी खुदाबाद साहब। तबसीर बनी रहती है, ज़हन पे बोझ रहता है सारा दिन। है सेहत के बारे में पूछना था। तबसीर होती है सारा दिन, ज़हन पे बोझ होता है। समझ बिल्कुल नहीं आ रही। जहन पे बोझ होता है सारा दिन? जी, तबसीर रहती है। जी नहीं, जहन पे बोझ क्यों होता है? खाने पीने से, जब खाता पीता हूँ ना कोई चीज, खाने पीने की वजह से कोई दिमागी ऐसा भारी जहन रहता है। ठीक है, ऑन एयर बता। जहन से बाहर हो जाता है, मैदे पे। ये मेरे ख्याल में कोई गैस्ट्रिक इशू है। हाँ, गैस्ट्रिक इशू बता रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि पायल्स की छत कोई बार कंप्लेन कर रहा है। अच्छा, चलिए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। वो आंखों वाली बात भी रह गई है, और एक और कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं कयूम बात कर रहा हूँ नौशहरा से। जी, ये वेट मेरा तकरीबन 100 kg है। हाँ जी। तो ये मैं कैसे लूज कर सकता हूँ? मैंने तो बहुत कोशिश की है, होता तो नहीं है। आपका कितनी हाइट कितनी है? हाइट तकरीबन 5 फुट 8 इंच। अच्छा, और आपने कैसे कोशिश की है? जो आपने बहुत कोशिश की, उसमें क्या किया? तो खाना कम खाता हूँ। कितना खाते हैं पूछूं? मेडिकल इश्यूज भी होंगे। तकरीबन आधी रोटी में खाता हूँ टाइम पे। अच्छा, और कोई और मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है? मेडिकल नहीं है, मैंने कुछ मेडिकल ऐसा भी नहीं लिया, या मेडिसिन कभी नहीं लिए।
कोई वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं आप कभी? वॉक तो नहीं कर सकता, एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं? एक्सरसाइज भी नहीं कर सकती। अच्छा, मीठे के शौकीन हैं? जी, मीठा वगैरह खाते हैं? हाँ, मीठा तो कम खाता हूँ, इतना नहीं खाता, चाय पीता हूँ बस। अच्छा, ठीक है, ऑनर बात करते हैं। इसमें ये कि पूरा फॉलो अप करना पड़ेगा। उन्होंने बोला ना आखिर में चाय पीता हूँ बस। हाँ, तो जो चाय पीते हैं बस चीनी वाली 8 कप, वो अपना काम दिखाती है। बहुत ज्यादा, बिल्कुल आपको आइडिया नहीं है कि आप 1 चम्मच चीनी उसमें डाल दें, उसका कितना नुकसान है। और या आप अगर 1 ग्लास फ्रिजी ड्रिंक का, कोल्ड ड्रिंक का पी रहे हैं तो आप 8 से 10 चम्मच चीनी उसके अंदर है, वो आपके अंदर जा रही है और आप कह रहे हैं रोटी तो मैं अभी खा रहा हूँ। कि वो ये हिसाब है ना कि आपको जो बीच में मंचिंग होती है वो काउंट ही नहीं होती ना। हाँ, बिस्किट खा लिया, चाय पियेंगे तो बिस्किट भी होगा साथ, तो बेकरी का और कोई आइटम होगा, वो नहीं काउंटिंग। निम्को होगा, कहीं पेटीज होगा, वो काउंटिंग में नहीं आती। वो पूरा फॉलो अप करना पड़ता है कि आप पूरी रूटीन एक चीज लिखें और फिर उसके बाद उनका डाइट। 100 kg से ज्यादा है, चाहे 6 फीट भी हो, इनका 5'8" की हाइट, वैसे ही ज्यादा है, वैसे ही ज्यादा है। तो लेकिन इसके लिए थोड़ी सी और जतन भी करने होते हैं, वॉक वगैरह तो करें। वॉक करने भी इनका मैं वॉक कर नहीं सकता। यही वजह पूछती कि क्या रूटीन ऐसी है या कोई टांगों में इशू है, बैक पेन है, क्या वजह है कि वॉक नहीं कर सकते? ठीक है, तो ये इनको तो पूरा प्रॉपर फॉलो अप करना चाहिए, आना चाहिए, किसी को कंसल्ट करना पड़ेगा। ओके, कंसल्ट करके बता सकते हैं कि वेट लॉस कैसे होगा। वैसे वेट लॉस हो जाता है अगर कोई अल्लाह ना करे कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, इवन अगर होता है, अगर डायग्नोज हो जाए तो ट्रीटमेंट हो जाती है और हो जाता है वेट लॉस, लेकिन थोड़ी सी विल पावर होनी चाहिए। हमारे साथ कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज्यादा चारपाई पे लेटने से कमर में तकलीफ हो जाती है, ये क्या बात है? जी, ज्यादा चारपाई पे लेटने से कमर में तकलीफ हो जाती है। कमर में तकलीफ हो जाती है भाई, तो मसल स्टिफनेस, ज्यादा लेटेंगे तो मसल स्टिफनेस हो जाएगी। एक्सरसाइज करें, थोड़ी सी उसकी सर्कुलेशन अच्छी होगी तो खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक्सरसाइज करें या गद्दा डालने? नहीं, और दूसरी है कि सर्कुलेशन आप ब्लॉक कर रहे हैं ना, कितनी देर ज्यादा चारपाई पे उन्होंने कहा तो उसके तो काफी ज्यादा है। तो ज्यादा चारपाई पे लेटने से। अच्छा, वो जिनकी आंतों, जिनको लगता है, उन्होंने किसी से पूछा नहीं है, कोई डायग्नोस किसी से करवाया नहीं है, आंतों में स्वेलिंग हो जाती है मेरी, ये कैसे? उन्होंने मेरे ख्याल से सारी के बाद का जिक्र किया था, तो उसका आई थिंक वो उनको ब्लोटिंग होती होगी, जो आप जब एकदम से खाते हैं तो क्या होता है कि आपकी स्टमक प्रिपेयर्ड नहीं, इतनी लंबी फास्टिंग की होती है, उसकी वजह से क्या होता है कि फूल जाता है, गैसेस भरना शुरू हो जाती है, तो दर्द होती है, फीलिंग आती है कि इसके अंदर कोई चीज़ है, तो वो खुद ही सुने डायग्नोसिस देखी कि सूजन हो जाती है, कुछ स्वेलिंग हो जाती है। तो अगर वो थोड़ा लाइट खाएं, गैप से खाएं, जैसे आपने स्टार्ट की, खजूर खाई, पानी थोड़ा सा पिया, नमाज पढ़ी, फिर आगे थोड़ा खाया, ऑयली चीज़ें नहीं खाएं ज़्यादा। अब डायग्नोसिस तो बड़े जबरदस्त है, इसके ऊपर तो काफी लंबी चीज, काफी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप सामने बैठे हो। हमारे साथ कॉलर हैं, प्रॉब्ली द लास्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैडम, क्या खैरियत है? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। मैडम, मैं गुजरात के पीछे अकबर खान से बात करूँ, हमारी खानदान की शुगर की बीमारी है। अच्छा जी मैडम, ये पहले हमारे बुजुर्ग जैसे उनको होती थी शुगर की बीमारी, आजकल हमारे जवान पर जैसे अब नहीं, मेरी 34 एज है। मेरे अब बच्चों को भी हो जाती है जी। अब हमने शुगर की बीमारी काफी ज्यादा हमारे खानदान में, और ये खानदानी बीमारी मैडम है, तो डॉक्टर साहब से सवाल करना था कि कोई ऐसी मेडिसिन हमें बता सकती है कि जो हम इस्तेमाल कर सकते कि हमारी चीज खत्म हो जाएगी बीमारी जो है। अच्छा, ऑन एयर बात कर लेते हैं। वैसे शुगर पे हमने प्रोग्राम भी किया था पिछले दिनों, अब तो बच्चों में भी है, बड़ों में भी है, और ये जाती इस तरह नहीं है, आप इसे कंट्रोल करना पड़ता है आपको। और इसकी ऐसे में कॉन्सेप्ट नहीं, लोगों को इसकी टाइप्स भी हैं कि आपकी पेंसियाज सही फंक्शन नहीं कर रही हैं, ओवर फंक्शन कर रही हैं, या आपका जो है वो सेल अपटेक खराब है, ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ट्रीटमेंट पेंसियाज अगर फंक्शन नहीं कर रही उसका तो अब आ गया हुआ है, ठीक है, इंटरनेशनली है कि आप पेंसियाज का ट्रांसप्लांट कराते हैं, लेकिन और बहुत सी चीजें, क्योंकि फैमिली का इन्होंने कहा तो जेनेटिक्स जो है वो पे तो खैर बहुत लंबी जाती है, बहस भी हो जाती है, और कोई दवा भी उसके लिए दवा नहीं है। और दूसरा ये कि अगर आपको किसी को डायग्नोज हो गई है ना, तो ट्रीटमेंट उसकी अवेलेबल है, वो आप करते रहें, उसे आप नॉर्मल रखने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच शरीज, आपने हमें वक्त दिया और बड़ी अच्छी बातें बताई। लेट्स सी हम कितना वेट लूज करते हैं या कितने फिट हो जाते हैं। एक ब्रेक, उसके बाद आप अपने मकान को घर कैसे बना सकते हैं, इसमें हम डिस्कशन करेंगे।
deserved it. Full contact from the in the air, gone! Pakistan cricket at its best. India blown away in the good shot, catches the ball, and then it's out. What the Imran would see the shot was set. Pakistan cricket team, well played, well done. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और सुबह खैर। इस वक्त की कुछ अहम खबरों के साथ जुबैर अहमद सिद्दीकी। For Bakar Zaman out of the no ball. He has made India pay. India 339 to win. Full contact from the in the air, gone! Pakistan cricket at its best. India blown away in the वज़ीर-ए-आज़म का चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम के हर खिलाड़ी के लिए 1-1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। पाकिस्तानी टीम ने चैंपियन बनकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। मोहम्मद नवाज शरीफ। पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर बाड़ लगाने का काम शुरू। पहले मरहले में बाजोड़, मोमंद और खैबर एजेंसियों से मुल्हिका सरहद पर बाड़ लगाई जा रही है। दूसरे मरहले में बाकी सरहद पर बाड़ लगाई जाएगी। महफूज पाक अफगान सरहद दोनों मुल्कों के मफाद में है। ISPR। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अंकारा में तुर्क अस्करी क़यादत से मुलाकात। फरीक़ैन का कसीरू जहती दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक़। जनरल कमर जावेद बाजवा को लेजेंड ऑफ मेरिट अवार्ड दिया गया। मुल्क भर में फसादियों के खिलाफ ऑपरेशन रद्दुल फसाद जारी। टांक में दरगाह दीवाना बाबा में फायरिंग के वाक़े में 2 दहशतगर्द हलाक। माशी सरगर्मियों के फरोग और कारोबारी बरादरी के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। बिजनेस कम्युनिटी अमन व अमान की बेहतर सूरत हाल के पेश नजर माशी सरगर्मियां तेज करे। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की ताजिरों से गुफ्तगू। एजाज अहमद चौधरी का वाशिंगटन में पाकिस्तानी सहाफ़ियों के एजाज में इफ्तार इशाइया। सहाफ़ी बरादरी बाहमी ताल्लुकात में इस्तेहकाम के लिए पुल का किरदार अदा कर रही है। मीडिया क़याम अमन के लिए किरदार अदा करे। पाकिस्तानी अमेरिकन के लिए ऑनलाइन सर्विसेज का आगाज किया जा रहा है। पाकिस्तानी सफीर। मदान में गुजर गढ़ी रिंग रोड पर मुसाफिर वैन और ट्रक में तसादुम। 5 अफराद जहां बहक, 11 जख्मियों को मदान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू जराए। सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन नाइफ को बरतरफ कर दिया। मोहम्मद बिन सलमान नए वली अहद, जबकि शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ वजीर दाखिला मुकर्रर। एलामिया। सोमालिया के दारकूमत मोगादिशु में कार बम हमला, 10 अफराद हलाक, 20 जख्मी। सरकारी इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह। शिद्दत पसंद तंजीम अश-शबाब ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर ली। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में प्री मानसून बारिशें।
मकानात और दीवारें गिरने से 3 खवातीन समेत 7 अफराद जाँ बहक। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आज भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज की लाहौर, जबकि फास्ट बॉलर जुनैद खान की इस्लामाबाद आमद। एयरपोर्ट्स पर खिलाड़ियों का शानदार इस्तकबाल। जीत का क्रेडिट पूरी टीम को जाता है। नए खिलाड़ियों ने इवेंट में अच्छा खेल पेश किया। मोहम्मद हफीज। और लंदन में हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड, पाकिस्तान ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वार्टर फाइनल मरहला जुमेरात से शुरू होगा। इस वक्त की अहम खबरें आपने मुलाहिजा की। मज़ीद अपडेट्स के लिए PTV न्यूज के साथ रहिए। रमजान की रहमत आ जाए किरदार में, बातचीत में नरमी हो, खुशी मिले इशार में। रमजान की रहमत आ जाए किरदार में, रमजान पाकिस्तान अल्लाह का निशान, रमजान वेलकम बैक। और हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और निहायत ही अहम, मुफीद और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मकान तो बहुत सारे हर शहर में है, गांव देहात में भी हैं, हर जगह है, लेकिन उनमें से घर बहुत कम है। तो मकान से घर तक का सफर कैसे तय हो सकता है या मकान को घर कैसे बनाया जा सकता है, इसके बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस अंजुम है, सियासी कारकुन है, सियासी समाजी सियासी भाई हो सकता है मेरी जबान अब रमजान में जब हो ही गया है तो पता चले कल को आप सियासी कारकुन हो जाएंगे। अच्छा, वैसे अभी तक समाजी कारकुन है, मैच मेकर हैं और लोगों के बहुत से रिश्ते इन्हीं की काविश की वजह से हुए। अपनी लाइफ, बच्चों की लाइफ, इर्द गिर्द वालों की लाइफ, बहुत सी एक्सपीरियंसेस हैं जिनसे आज हम फैज़याब हो सकते हैं और इस सब्जेक्ट पे इनसे बहुत सी चीज़ें हाईलाइट करवा सकते हैं। वी हैव आयशा बिलाल जो कि मजहबी स्कॉलर हैं और इस मामले में खास तौर पे हम मजहब की रोशनी में भी जाते हैं और वैसे भी आपके एक्सपीरियंसेस की क्या आप समझती हैं। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। एंड हमारे साथ हमारे राइटर अफसार अहमद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, वैसे राइटर का होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे आपके तो ड्रामा राइटिंग के हवाले से उस तरह से ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो हमारे ड्रामे चल रहे हैं, जो ओवरऑल मीडिया पे गुफ्तगू चल रही है, उससे भी लोग काफी असर लेते हैं और अपनी जिंदगियों को इसी तरह लेकर चलने की कोशिश करते हैं। तो आपने भी, क्योंकि जज्बात को आप समझते हैं, फिर उसकी अक्कासी अपने कलम के जरिए करते हैं, तो इस हवाले से आपने बताना है। शुरुआत आपसे करते हैं मिस्टर अंजुम जी। ये जो मकान से घर तक का सफर है, ये कैसा है? बहुत ही खूबसूरत। मकान तो देखो, मकान को क्या एडमायर करना, मकान भी वही खूबसूरत लगते हैं जिसके अंदर लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं। उस घर की तो दीवारें, एक एक चीज में आपको इमोशंस और खूबसूरती दिखती है। और आप यकीन करो कि जिस घर में डिप्रेशन या लड़ाई झगड़े या आपस के ताल्लुकात जिस मकान के अंदर नहीं होते, उस घर से एक अजीब सी वहशत आती है जो हर कोई महसूस कर सकता है कि हम उस घर में गए, उस घर में थोड़ा अजीब सा डिप्रेशन था, अजीब सा फील था। एक फिजा अच्छी सी महसूस होती है, वो सिर्फ घर में रहने वालों के आपस के ताल्लुकात की वजह से। कुछ घरों में जाए बड़ी रौनक लगती है, बहुत रौनक। आपका दिल नहीं चाहता, आप सोचते हैं कि हाँ यहाँ रुकें।
जबकि वहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बच्चे बोल रहे हो, शोर हो, जैसे लाइट दिख रही हो, लेकिन उनकी सराउंडिंग, उनके एम्बियंस पे इतनी आपस बाहमी मोहब्बत की वजह से उनकी हर चीज से जो खूबसूरती, वो अंग्रेजी में हम कहते हैं ना वार्मथ होती है कुछ जगहों पे, कुछ घरों में, कुछ लोगों के दरमियान, तो उसका भी बड़ा असर होता है। लेकिन वो वार्मथ आती कैसे है? वो वार्मथ आपस में प्यार मोहब्बत, उस मकान में रहने वाले वो जो भी पेरेंट्स और बच्चों में आपस के ताल्लुकात, मोहब्बत, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, सेक्रीफाइस करना एक दूसरे की ये चीजें समझना, जिस घर में ये हो, मियाँ बीवी के ताल्लुकात, पेरेंट्स के अपने बच्चों से, सासों की अपनी बहू से अच्छे ताल्लुकात, तो आपका सलूक अपने नौकरों से अच्छा हो, आपके मुलाजमों से अच्छा हो, आपके घर में कोई जानवर पला हुआ है, आपका उससे सलूक अच्छा है, आपके घर में भी नहीं है, आपने उसके लिए कोई अगर बाहर कोई बाजरा या कोई चीज की पानी रखी है, आपकी अपनी पर्सनालिटी पता चलती है, इसका मतलब आपके अंदर प्यार है, आपके अंदर मोहब्बत है, समझते हैं आप दूसरों के मसाइल को। ठीक है। तो जब आप एक बेहतरीन इंसान होंगे तो वो मकान भी बहुत, और उस मकान में अल्लाह की बहुत रहमतें, बिल्कुल, और रहमतों की वजह से वो ऐसा लगता है ना। जी, आप क्या कहेंगे आयशा? देखिए, अगर हम घर की अहमियत को जानना चाहते हैं तो अगर हम कुरान को उठाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। देखिए, घर की अहमियत को खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी बयान किया और अपना बाकायदा तौर पर अपने घर का हमें बताकर उसने कुरान में वाज़ेह किया, जिसे हम बैतुल्लाह कहा करते हैं, यानी अल्लाह का घर कहा करते हैं। इसी तरह से हम अगर अपने घर की बात करते हैं तो हमें कुरान ने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, तो उनकी क्रिकेट जो है वो भी बेहतर हो जाएगी और हमारी भी, क्योंकि अवाम जो है उसको क्रिकेट मैच ही समझेंगे। बहुत जाहिर बात है, अब आप देख ले जिस तरीके से हम जीत के आए तो टोटली डिफरेंट है, और वो लोग जो है वो क्रिकेट को कुछ ज्यादा ही, हम लोगों से भी ज्यादा क्रेजी है, तो वो लोग जाहिर बात है डाउन हुए, स्पेशली जब पाकिस्तान से आते हैं तो वो चाहे ICC का हो या जो भी टूर्नामेंट हो तो वो लोग डाउन हो जाते हैं, और ये स्पेशली का भी फाइनल तो इसलिए वो ज्यादा मातम कर मैं बेसिकली इंग्लैंड में था, क्योंकि अभी मैं काउंटी खेलने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं एक जीत को यहाँ पे एंजॉय कर लूँ, और कोशिश यही है कि फैमिली के साथ ईद भी करूँगा, तो इंशाल्लाह ईद के बाद फिर काउंटी के लिए जाऊँगा। जमा स्पेशली दे हल्को तैयार रिक्वेस्ट है लेकिन उस चकम दगा शेद है नो तास टोल पता रहे पाकिस्तान और सिक्की रखा रोजाना मिस्ती नो मुंगा दा प्रोग्राम किरे पर जुनेद खान के टिकट दे कि 10 बजे मा सतन किरे मुंग पर प्रोग्राम करे दे नो जमा टोल पर रिक्वेस्ट है आगा तास टोल यही है कि मैच वाले दिन तो रोजे नहीं रख सकते क्योंकि मुश्किल हो जाता है, चाहे आप बैट्समैन हो या बॉलर हो, लेकिन ये कि परिस्थिति में कोशिश की कि सारे रोजे रखें। जमा ख्याल हो मेरे ख्याल में तो यही है कि चैंपियन ख्याल खुदा से चैंपियन साथ गटल से दादम बता खुशहाली दा कागा मुंग हिंदुस्तान में गटल हुआ फास्ट बॉलर जुनेद खान इस वक्त स्वाबी इंटरचेंज पहुंचे हैं। की रहमत आ जाए किरदार में, बातचीत में नरमी हो, खुशी मिले साथ में, रमजान की रहमत आ जाए किरदार में, रमजान पाकिस्तान अल्लाह का टूर आ जाता है या कोई अपनी गलती होती है या मीडिया का इन्फ्लुएंस होता है, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं कि आप वहां पर भी एक दूसरे को जानबूझ के इरिटेट करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मसाइल भी अपनी जगह, मैं इनसे एक एक करके आऊंगी, लेकिन पहले मैं आपसे चाहती हूँ कि आप भी इंट्रोडक्शन में, जैसे इन लोगों ने बड़ी अच्छी बातें की, तो आपसे भी हम सुने।
जी, सबसे पहली बात तो यह है कि मकान को घर कैसे बना। अब लफ्ज मकान और घर ये दोनों जो है एक जैसे ही हर्फ है, एक जैसे ही लफ्ज है, जिसे कहा जाए कि मुमासिल लफ्ज है। मगर दरहकीकत देखा जाए तो मकान जो है वो उसकी फिजिकल फॉर्म है और वो उसकी घर जो है वो मेटाफिजिकल है। तो अब मकान और घर कहने को तो दोनों एक ही चीज है, मगर मकान जो है दरहकीकत चार दीवारी है और घर जो उसके अंदर मकानियत है, जिस तरह मिसेज अंजुम साहब ने जिस तरह से कहा कि वो जो मकान के अंदर कुछ मकानों में जब हम देखते हैं तो वीरानियत होती है, वहशत होती है। घर के अंदर जो घर होता है उसके अंदर समझ लें घर क्या चीज है बुनियादी तौर पर। घर माशरे की बुनियादी इकाई है और यही आज हमारे यहाँ सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है कि एक मुस्तहकम माशरे के लिए घर का मजबूत होना जरूरी है। और यही वजह है कि जब आपका यूनिट कमजोर होगा तो आपका पूरा जो माशरा है वो कमजोर हो जाएगा। और हम यही देख रहे हैं कि हमारे जो अखलाकी इनेतात है, हमारा जो अखलाकी जवाल है और जो पूरा माशरा गिरा जा रहा है उसके अंदर बुनियादी सबब जो है वो घर है। और यही बात यही नहीं है बल्कि ये बात हम मगरबी दुनिया से देखते हुए आ रहे हैं कि मगरबी दुनिया में 2009 में नॉम चॉम्स्की ने एक आर्टिकल लिखा था और उसने बता दिया था, उसने वाज़ेह तौर पे कहा कि पूरी मगरबी दुनिया इस वक्त इनेतात का शिकार है, इस वक्त डिक्लाइन की तरफ जा रही है। जिसकी वजह यह है कि घर को बहुत खूबसूरत है, बहुत आलीशान है, बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट है, मगर वहां पर रहने वाले लोगों में आपस में मोहब्बत और जो मवद्दत है वो नहीं है। और यही वजह है। और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ है, मैं आपको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह से आयशा ने बताया कि अगर हम दर हकीकत देखें, आज हम उनसे सीखते हैं, दर हकीकत हमें तो 1400 साल पहले बता दिया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आलिया है रहमतुल लिल आलमीन, और जो उनकी बात है वो बरहक है, वही सच है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन है। और जब वो घर वालों के लिए बेहतरीन है तो मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशरे की मजबूती के लिए बता दिया। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद आगे बताया कि मैं सबसे अपने घर वालों के लिए सब में बेहतरीन हूँ। अब हम ये देखते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम रिश्तों में देखें, हर रिश्ते के अंदर जो मिसाली भरपूर और कारनामा है, मतलब जो हकीकत है, जो तारीफ से रकम है, वो भी इसी आलम ने देखा। तो हम ये देखते हैं कि जो माशरा है जो वो घर की बुनियाद पे जा रहा है और घर जो है आज हमारा जो घर का निजाम है वही जो है डिस्टर्ब हो चुका है। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त शाह जी की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बहन, आप कैसी हैं? खैरियत से? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा बहन, ये मकान और घर का बहुत जबरदस्त आपने टॉपिक रखा है। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि मकान और घर तीसरे फोरम पर भी जाए जिनका ना मकान है ना घर है, वो डिस्प्लेस्ड पर्सन है। आप यकीन करेंगे दोनों की तकालीफ तो अपनी जगह है। घर जो है मोहब्बत और प्यार और फैमिली से बनता है, मकान एक ढांचा है। ये बिल्कुल जबरदस्त टॉपिक पीटीवी ने रखा है। जो एक्सपर्ट आए हुए हैं, जो पार्टिसिपेंट हैं, बहुत जबरदस्त इसकी तशरीह करते हैं। लेकिन एक दिन ये डिस्प्लेस्ड पर्सन जो है जिनका न घर है न मकान है, फाइनेंशियल वजूहात से या और दुनियावी वजूहात से, तो इसके लिए मैंने आपको रिक्वेस्ट की है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी रिक्वेस्ट का। अच्छा, कुछ बातें मैं और आप लोगों से करना चाहती हूँ, क्योंकि घरों में जो हम घर देखते थे पहले, एक तो ये था कि घर वाले घरों में बहुत तवज्जो देते थे। अब घर वाले और घर वालियाँ घरों से बाहर ज्यादा तवज्जो देते हैं और उसे एंजॉय करते हैं। मेरे ख्याल में मुझे ये लगता है कि घर जब बनता है जब आपको घर जाना अच्छा लगे। घर वो होता है कि हर मेंबर को घर जाना अच्छा लगे। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसे भी लोग हैं जिन्हें घर जाना अच्छा नहीं लगता। एक तो ये चीज हो गई, और घर में किसी को बुलाना भी अच्छा नहीं लगता। पहले ये सिस्टम बहुत था, खानदानी सिस्टम थे, जॉइंट सिस्टम थे, लोगों को बर्डन नहीं लगता था। अब किसी का आना आपको बर्डन लगने लग गया है। ये भी तो घर होने या ना होने की एक मेरे ख्याल में एक सिंबल है ये बिल्कुल। आपस में जब मोहब्बतें आपस में जो खत्म हो जाएंगी, लोग मतलबी खुदगर्ज हो जाएंगे, सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे, तो उनको ये सब चीजें बर्डन लगेंगी। अब हमारे बचपने में यही होता था, जैसे बिल्कुल तुमने कहा कि आ रहे हैं, हर मौके पे खाने हो रहे हैं, दावतें हो रही हैं। अब तो ये कोई मतलब ये हार्डली, अब ये तो मौकों पे रह गया, ईद पे या बकरीद पे। ईद पे आप अपने अनफॉर्चुनेटली रिश्तेदारों से मिलते हैं, अदरवाइज आप नहीं मिलते। अब हम तो चलो फिर भी जानते हैं, अब जो हमारे बच्चे हैं, जैसे मेरे बच्चे बड़े हैं, ये लोग तो घरों में, जैसे लगता है घरों को रेस्ट हाउस, ये एज ग्रुप जो अब है
बच्चों का, ये घरों को बिल्कुल एज अ रेस्ट हाउस यूज करते हैं, सोते हैं और उठते हैं और बाहर चले जाते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो चाहे स्कूल हो, और फिर वो आके एक्चुअली कुछ सिस्टम ऐसा हो गया हमारे यहाँ का स्कूल लाइफ से ही कि बच्चा भी स्कूल से आया, जल्दी जल्दी खाना खिलाया, फिर ट्यूशन जाओ, फिर ट्यूशन से कारी साहब के पास जाओ, फिर थोड़ा सा टीवी देखो, फिर सो जाओ, फिर सो के उठो तो वो स्कूल, दोबारा से स्कूल। तो लाइफ पैटर्न ऐसा बन चुका है विद टाइम कि लोगों को अब उस तरह ये जो अब यंग जनरेशन है ये तो घरों में दिखती नहीं है, ये कंटिन्यूअस बाहर या तो रेस्टोरेंट से जो इनको टाइम मिलता है वो अपने फ्रेंड्स के साथ, ये हमारे जमाने में अदर एवरेज क्लास में मुझे तो ये भी थोड़ा सा रिजर्वेशन है कि जो खातूने खाना है उनको बिल्कुल मना नहीं है, वो काम करें सब करें, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अब तो मैं ये देखने लगी हूँ कि इस भाग दौड़ में हमारे यहाँ की खवातीन भी अपने घर से उस तरह से अटैच नहीं है। हाँ, मतलब ज्यादातर टाइम उनका भी फ्रेंड्स में और मूवीज में और बहुत सी और चीजों में, गैदरिंग्स में, चाहे वो ऑफिशियल डिनर्स हैं, लंचेस हैं, उनमें गुजर रहा होता है। देयर इज नो लिमिट टू इट कि मुझे कहाँ तक अपनी एक मेरे ख्याल में लिमिट रखनी है और उसके बाद मेरा घर है या घर है, वो वाली फीलिंग नहीं है, वो वाली हाँ बिल्कुल नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी अपने मकान को घर बनाए बैठे हैं, वो तो है, जो नहीं है बिल्कुल हम उनकी हाँ, जो नहीं है वो तो उनके यहाँ तो बहुत ही बुरे हाल है, उनका घर जो है वो बस अल्लाह चला ही रहा है तो वो चल रहा है। तो जब माई देखो, माँ का रोल होता है, जो माँ घर में हो, सारे हस्बैंड का फादर्स का तो काम यही है कि वो कमाएं और सारे एक्सपेंस पूरे करें, माओं का ही काम है उस मकान को घर बनाना। ये एक औरत और अल्लाह मियाँ ने ये क्वालिटी दी है औरतों में, 100% ये क्वालिटी औरतों ही में दी है। ये वो यूटिलाइज नहीं करती अपने दूसरे इंटरेस्ट की वजह से, जो नहीं करती। और क्योंकि लड़कियों में हम देखते हैं कि मैच्योरिटी भी जल्दी आती है, 20 साल की लड़की में जितनी मैच्योरिटी होगी उतनी 20 साल के लड़के में मैच्योरिटी नहीं होगी। हाँ, लेकिन इसीलिए जैसे आपने कहा कि अल्लाह ताला ने ये सलाहियत उनको दी है कि वो घर बना सकती है, और फिर वो माहौल घर का जहाँ लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। जी आयशा, देखिए इससे तो बच्चों के ऊपर भी बड़ा असर पड़ता है अगर झगड़े। अच्छा, बहन भाइयों में भी, बड़े बहन भाई, छोटे बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, आपने ये लड़ाई झगड़ों पे आज बात करनी है और कुछ ऐसी बात बताएं कि शायद लोग थोड़ा अपने आप को रोक सकें। सास बहू की लड़ाई, नंद और भाभी की लड़ाई, मियाँ बीवी की लड़ाई, बड़े बच्चे आपस में उनकी लड़ाई, कोई यंग भाभी है उनके साथ लड़ाई, ये सारी लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा हो रही हैं और इससे माहौल भी अजीब होता है और रिश्ते भी फिर पायदार नहीं रह पाते। तो इस पर आपने कॉमेंट जरूर करना है और जितनी बातें हुई इसको भी मैं चाहती हूँ कि आप जरूर हाईलाइट करें। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपने मकान और घर की बात की है। मकान ईंटों और पत्थर से बनता है, घर अच्छे अखलाक से बनते हैं। हमारी जबान में करवा ज्यादा आ गई, सब्र नहीं है, बर्दाश्त सब्र नहीं है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही, बिल्कुल सही कही है। ये इसका जवाब जो है मैं आपसे लूंगी, जो सब्र ना होने की बात की है। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम जुबैर साहब। वालेकुम सलाम। जी भाई, घर बनते हैं प्यार से, मोहब्बत से और रिश्तों से, यही होना चाहिए। हेलो जी, क्या होना चाहिए? घर प्यार में बहुत रिश्तों से बनते हैं और मेरी बहुत साथ खराब है, वो डॉक्टर बिठा रहे उधर तो बड़ी मेहरबानी होगी, डॉक्टर का मशवरा नहीं देते। डॉक्टर का मशवरा, अच्छा ठीक है, कोई मसला है आपको और आप डॉक्टर का मशवरा चाहते हैं तो अब वो नेक्स्ट टाइम हो सकता है। पहले एक डॉक्टर साहिबा थी, अब कल या परसों में डॉक्टर साहब आएंगे तो जरूर आप हमें कॉल कर लीजिएगा। जी देखिए, अगर हम झगड़े की बात करते हैं ना तो मैं आपको एक हदीस बताती हूँ, क्योंकि शब कदर के अय्याम गुजर रहे हैं और उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताने ही निकले थे कि शब कदर कौन सी रात होती है। तो देखा कि दो मुसलमान आपस में झगड़ा कर रहे हैं। उस झगड़ा करने की वजह से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बताया नहीं कि शब कदर कौन सी रात है। ये उसका बवाल था जो हम आज जान नहीं सके हैं और हमें बताना भी मकसूद था कि देखो झगड़ा किस कदर बड़ा बवाल है। और अगर हम घर के माहौल में इस तरह का माहौल रखते हैं तो देखिए, अगर घर में बच्चे को या लड़की को या लड़के को मोहब्बत नहीं मिलती है ना, वो अपनायत नहीं मिलती है, तो वो बाहर निकलता है और वो फिर घर का नहीं रहता है। वो फिर वो मोहब्बतें, वो जो शफकत उसे मिलनी चाहिए थी, वो फिर बाहर ढूंढता है और वो बाज़ औक़ात बड़े नुकसान का भी शिकार हो जाता है।
घर के माहौल की वजह से। इसी तरह से अगर कोई बच्ची है जो अपनी सास के साथ रवैया ठीक नहीं रखती है, या सास है जो अपनी बहू के साथ रवैया ठीक नहीं रखती हैं, या देवरानी जेठानी में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो हर बंदा अपनी अपनी जिम्मेदारी को अदा करे। आप देखिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बेहतरीन बात है, जिनकी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा, जिनके लिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खड़े हो जाया करते हैं, और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ये देखिए आदत कि अपने घर में मौजूद हैं तो अपने हाथ से चक्की पीस रही हैं, बच्चों की परवरिश कर रही हैं, इबादत भी कर रही हैं। तो ये एक औरत अगर इनकी सीरत को पढ़े तो उसमें बेहतरीन चीजों का हल हमें मिल सकता है। उस वक्त भी तो खवातीन थी और उस वक्त हमसे ज्यादा मसाइल थे उनके पास। हाँ, बहुत बहुत आटा मुश्किल जिंदगी थी, बहुत मुश्किल जिंदगी थी। अगर बहुत मुश्किल जिंदगी थी। अब तो आपके घर में एसी है, आपके पास बहुत सी चीजें, हर सहूलत है, बिजली जाती है, तो आप उस वक्त क्या दौर था, क्या मुश्किलात थी, लेकिन कितने सब्र और शुक्र के साथ क्योंकि वो जानती थी कि दीन में ही सब मसाइल का हल है और उनका तवक्कुल अल्लाह पर था। और आजकल हम असल में किसी के साथ नेकी भी करते हैं तो हम सामने वाले से ये उम्मीद रखते हैं कि वो भी हमारे साथ नेकी करेगा। हमें ये चाहिए कि हम जब नेकी करें तो हम उसको छोड़ दें और अल्लाह से उम्मीद रखें। अच्छा, ये तमाम उन खवातीन के लिए भी है क्योंकि घरेलू टॉपिक है, तो उन खवातीन के लिए भी है जो कभी कहते हैं ना अपने फ्रेंड्स में बैठ के, भाई उसने मेरे साथ ये क्यों किया, मैं क्यों करूँ, वो मुझे हमेशा डांटती रहती है तो मैं क्यों बोलूँ जाके, जब वो मुझे बुरा समझती है तो मुझे क्या जरूरत है, हो जाता है इंसान। मालिक बिन दिनार का मैं एक वाक़या मेरे ध्यान में आ रहा है। अच्छा, यहीं से आपके वाक़े से शुरू करते हैं। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम, सबको सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग, ठीक ठाक हैं? जी ठीक ठाक। अच्छा, टॉपिक आपका जो है इस हवाले से मैं ये बात करना चाहूँगा कि घर जो है वो मेरा अपना ख्याल है, क्योंकि मैं भी बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और अल्लाह का शुक्र है मैरिड हूँ, तो आपको जो है ना सबको एक दूसरे को समझ के और साथ लेके चलना पड़ता है, तो आपका घर कामयाब होता है। और जब आपका घर कामयाब होगा तो जाहिर सी बात है आप खुद भी कामयाब होंगे, और अल्टीमेटली जो है आपको प्रेशर नहीं होगा तो फिर आप अपने डोमेन में या अपने फील्ड में रहते हुए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। लोगों अच्छा, तो क्या हुआ क्या इसमें पता नहीं चला कि क्या किया जो घर अच्छा होगा? जी, शादी के 3-4 महीने बाद ऐसा हुआ कि कुछ चीजों पर मेरा और मेरी वाइफ के दरमियान जो था मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अच्छा। वो इस टाइप की कि आज अम्मी के जाना है तो कल वहाँ जाना है, तो कमिटमेंट्स हो गए थे और वो डे फिक्स कर दिए गए थे। तो अब जाहिर सी बात है कि जॉब में टाइमिंग तो हमारी फिक्स होती नहीं है, तो कभी के बाद जो लेट होना पड़ता है, तो इस दौरान जो है मामला तो रिसीव होने लगे। तो फिर मैंने ये तय किया कि भाई अब जो है कोई कमिटमेंट नहीं होगा, सरप्राइज होगा, आपको मैं कुछ बता दूंगा और आप मुझे बता देना भाई, अगर जल्दी आ जाते हैं घर तो इस तरह से हम जाएंगे, मैनेज करेंगे, खाने पे भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे, घूमेंगे, सब कुछ। और फिर अपनी अम्मी को भी इसी तरह मैंने समझाया, तो अल्लाह का शुक्र है। और टाइम लगा मुझे थोड़ा इसमें, एक तकरीबन समझ 2 साल लगे, लेकिन 2 साल बाद रिजल्ट अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा है। और अब मैं बहुत रिलैक्स हूँ और सब एक दूसरे को समझते हैं और सब एक दूसरे के साथ अच्छा चलते हैं। तो जरूरी है, जो लीडिंग पर्सन होता है घर में बड़ा हूँ तो जिम्मेदारी भी बहुत है, लेकिन उस जिम्मेदारी को निभाते हुए अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा है। और मैं ये चाहूंगा मिसेस अंजुम से कि वो खास तौर पर खातूनों के लिए कुछ बात करें, क्योंकि हम देखते रहते हैं मिसेस अंजुम को कि वो बताएं कि वो उनसे बेस करता है घर ज्यादातर, क्योंकि हमने बताया। और बल्कि आपके सवाल से मैं एक सवाल अभी इनको दे देती हूँ, जवाब उसका हम बाद में लेंगे कि ये जो शादी के फौरन बाद है ना, हमारे यहाँ होते हैं ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, तो बजाय इसी कि लड़का लड़की एक दूसरे को समझे, वो घर वालों को समझाने में लगे रहते हैं कि ये बहुत अच्छी है, और वो ये समझाने में लगी रहती है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, और मतलब एक दूसरे अपनी केमिस्ट्री एक दूसरे से बनाने से ज्यादा घर वालों से बनाने में मसरूफ रहते हैं बेचारे। तो ये हमारे प्रेशर्स बहुत हैं जिसकी वजह से मसाइल होते हैं। इस पर आपने जरूर कॉमेंट करना है। एक और कॉलर है और मैं फिर आपसे बात करना चाह रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुसरत साइमा बात कर रही हूँ कोयटा से। क्या हाल है आपके? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। आपके गेस्ट को भी जो इनवाइटेड है इनको भी अस्सलाम वालेकुम। जी, और दूसरा ये कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट हमेशा की तरह आप लेके आई हैं, आपकी टीम लेके आई है। तो बात हो रही थी घर और मकान की, तो बहुत से पॉइंट्स मेरे ध्यान में आ रहे हैं, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं बस कुछ ही पॉइंट्स बताऊंगी। और आपके एक्सपर्ट से बहुत अच्छे पॉइंट्स को सामने लेकर के आए हैं, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। एक तो ये कि पता है कि हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में जो घरों की तादाद कम दिख रही है और
सिर्फ हमें ये बेंगलोर दिखाई दे रहे हैं, चोटियाँ दिखाई दे रही है। इसकी वजह ये है कि इसका मादियत पसंदी हमारे मुआशरे में बहुत बढ़ चुकी है ना, यानी वर्ड जो है वो मेटेरियलिस्टिक चीजें, इसलिए बहुत ये चीजें काउंट हो रही है। और जैसे आपने भी बात की कि हमारे यहाँ ऐसी और इसका मतलब जदीद टेक्नोलॉजी की बात की, इसकी वजह से भी ये चीजें बहुत बढ़ गई है। जैसे अब कल मुझे एक न्यूज सुनने को मिली कि एक बेटे ने सिर्फ किसी ड्रेस के लिए अपनी 17 ईयर्स ओल्ड मदर को कत्ल कर दिया ना। तो ये चीजें क्या है, ये मादियत पसंदी है, शर्म की कमी हो गई है, बर्दाश्त की कमी हो गई है, तनाव की कमी हो गई है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये इस वजह से हमें घर कम दिखाई दे रहे हैं और मकान हमें ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। और ये कि रिश्तों के दरमियान जो बाहमी एक मोहब्बत, प्यार, खलूस जो चीजें हमें देखने में मिलती थी ना, वो चीजें दिखाई नहीं दे रही। और इसमें पता मीडिया का हाथ भी है, शामिल है। अगर मीडिया के रोल पे भी बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच साइमा, आपने हमें कॉल की क्योंकि वक्त कम होता है ऑब्वियसली, जैसे कि आप समझती हैं इस बात को। काफी कॉलर्स भी हैं और मैं चाहती हूँ गेस्ट भी अपनी पॉइंट जल्दी हम तक पहुँचा सके। एक किस्सा आप सुना रही थी, उसके बाद मैं अफ्तार साहब से बात करना चाहती हूँ। हजरत मालिक बिन दीनार जहाँ रहते थे, जिस घर में रहते थे, उसमें बिल्कुल बराबर में एक यहूदी रहता था। तो वो शख्स उसने इस तरह से किया कि जो अपना परनाला था जहाँ से गंदगी गुजरती थी, वो मालिक बिन दीनार के घर की तरफ कर दी। और कुछ अर्से तक, यहाँ तक कि जो नमाज पढ़ने की जगह थी हजरत मालिक बिन दीनार की, वो भी गंदी होने लगी। तो इस अरसे के बाद वो आया उनके पास और पूछता है क्या आपको ये जो गलाजत रहती है उससे तकलीफ नहीं होती है? तो उन्होंने कहा कि हमारा कुरान कहता है कि वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, कि जो गुस्से को पीते हैं और लोगों को माफ करते हैं, वो अल्लाह उनको महबूब रखता है। तब उस यहूदी ने ये बात सुनी तो कहने लगा कि जब आपके दीन के लोग इतने प्यारे हैं तो आपका दीन कितना प्यारा होगा। ये उनका जो रवैया था, जो उनकी जो आदत थी, उससे मुतासिर होकर वो शख्स मुसलमान हो गया। तो अगर यही चीज हम अपने घरों में भी रखें कि जहाँ जहाँ हमें तकलीफ होती है, परेशानी होती है, हम थोड़ा सा गुस्से को साइड पे करें, माफ कर दें, तो सामने वाले का दिल भी बड़ा होगा कि भाई मैं तो इसके साथ बुरा कर रहा हूँ, मैं इसके साथ अच्छा करूँ। और चैनल 5 अब आपके स्मार्टफोन पर खबरें और चैनल 5 की मोबाइल एप्लीकेशन से रखिए खुद को हर लम्हा बाखबर। खबर उनकी हो या फैल या फिर खेल के मैदान से। सारा दिन प्रैक्टिस फिर सब साथ है, दुनिया भर के टूर खबरें और चैनल 5 की मोबाइल एप्लीकेशन रहे हर वक्त उनके साथ जो रखती है रोजनामा खबरें और चैनल 5 पर नजर। खूबसूरत इंटरफेस के साथ खबर का अंदाज, रोजनामा खबरें और चैनल 5 के बाद दिन भर शूटिंग में मसरूफ और हालात हाजरा पर भी नजर रखना जरूरी। पल पल बदलते हालात से बाखबर रहना आपकी जरूरत। जरूरत पूरी करती है खबरें जो मोबाइल ऐप जो मेरे फोन में हर वक्त मौजूद रहती है, सिर्फ एक क्लिक की पूरी करती है। खबरें मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, हर वक्त खबरें हर वक्त बाखबर। वेलकम बैक। और हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, मिसेस अंजुम हैं, आयशा बिलाल हैं, अफसार अहमद साहब हैं और एक कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
हाँ जी, कौन है हमारे साथ? मुझे नाम वैसे बताया जाता है लेकिन वो है। आप ठीक है? जी ठीक ठाक, लगा शुक्र। हाँ जी, मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। हाँ जी, मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। कोई बात नहीं, मुझे आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है, बताइए क्या कहना चाहती हैं? मैम, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। थैंक यू। और मुझे आपकी होस्टिंग का स्टाइल और आपकी प्रोग्राम और आपकी गेस्ट सब कुछ बहुत अच्छा लगा है। प्लेजर। और टॉपिक भी आपने बहुत अच्छा सिलेक्ट किया है। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आजकल की लड़कियाँ बहुत जल्द पास हो गई हैं मेरे ख्याल में। ठीक है। तो यानी कि वो टाइम नहीं देती हैं कि घर बनने में, और शादी के बाद जब घर बनने में कुछ टाइम लगता है ना, वो टाइम नहीं देना चाहती हैं। इसका क्या सोल्यूशन है? ठीक है, इस पर हम बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच, क्योंकि अभी हम पेशेंस पे ही बात करने वाले थे। अब्तार साहब, पहले भी कॉलर ने कहा कि अब बर्दाश्त खत्म हो गई है। बिल्कुल, बल्कि उससे पहले एक कॉलर ने आके बड़ी अच्छी बात कही थी कि अब घर तो बहुत हो रहे हैं, मकान तो बहुत हैं, घर नहीं है। तो असल मुझे इस पर एक बड़ा अच्छा शेर याद आया कि जहले खरद ने दिन ये दिखाए, घट गए इंसान बढ़ गए साए। तो हकीकत यही है कि अब जिस तरह घट गए इंसान बढ़ गए साए, तो अब आप यकीनन आप ये देखें जिस तरह इंसान अब नहीं है, वो साए हैं। जो इंसानों के अंदर जो इंसानियत है उसका फुकदान है, तो यकीनन फिर ऑटोमेटिकली जो है घर तो मतलब मौजूद नहीं होंगे मगर मकान जरूर होंगे। और हकीकतन अगर हम इसको माशरे के अंदर और बड़े बड़े मकान, पहले छोटी छोटी जगहों पर हम कितने लोग घरौंदे होते थे, उसके अंदर घराना होता था। अब बहुत बड़े घर में 4 लोग, मुश्किल से 2 लोग। बिल्कुल, उसके बावजूद आपस में जो मोहब्बत, उल्फत, मवद्दत, ईसार और सब्र, ये 4-5 चीजें हैं जो घर बनाती। वो चीजें जो है हमसे मतलब रूठ चुकी हैं, वो निकल चुकी हैं। और हकीकतन अगर देखा जाए कि इसमें ऐसा क्यों कर हुआ, तो हम माशरे की तरफ इसमें जो बुनियाद आ जाती है वो है बर्दाश्त। हमारे अंदर से बर्दाश्त खत्म हो गई। और दूसरी बात जो हमें एक मगरिब से ना एक मफरूजा हमारे पास आया है, वो है हुकूक। लफ्ज आता है राइट्स। मैं कहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, इस्लाम के अंदर घर वालों के लिए कोई हुकूक नहीं है। हुकूक नहीं है बल्कि फर्ज है। मुझे अपने वालिदैन की खिदमत करनी है, वालिदैन को मेरी खिदमत, मुझे उनके जो मतलब जो उनके मामला है वो मुझे वो सब चीजें फराइज है। हुकूक की जहाँ तक बात आती है, हुकूक इंसान हासिल करता है, फर्ज निभाता है। आज हमने यही किया है, हम हुकूक के लिए देखे जंग पे आमादा कर रहे हैं, बिल्कुल तगोदा कर रहे हैं। फर्ज निभाना हमने खत्म कर दिया। जब ये चीज खत्म हो जाती है, अब आप ये देखें कि एक आजकल हमारे यहाँ एक बड़ी मशहूर एक मफरूजा है कि जैक एंड ऑल और मास्टर ऑफ नन, वो बड़ा मशहूर है कि आप जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। तो आप ये देखें ये कितना, इसके अंदर अगर हम घर पे रख लें ना, तो ये चीज यहाँ पर ये मफरूजा रद्द हो जाता है कि एक वक्त में एक शख्स सब कुछ है, एक ही वक्त में बेटा भी है, बाप भी है, शौहर भी है, और कई रिश्ते निभा रहा है, और बेहतरीन अंदाज में निभा रहा है, और निभाना चाहिए। और फिर आप देखें कि हर चीज कितनी खुश उसलूबी से चल रही होती है। मगर जब बात आती है हुकूक की, जब वो हुकूक की जब बात आती है तो लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। और वो कहाँ से होता है? वो होता है बर्दाश्त। और बर्दाश्त क्यों कर खत्म हो गई? कि वजह यह है कि हमारे यहाँ जबान बड़ी तेज हो गई। जबान आप, और जब के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, और हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया कि जबान मुकम्मल दीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज़ को फरमाया कि दीन की जो तकमील है वो जबान है, मुकम्मल है। तो आप यही देखिए हमारे जितने मामलात हैं वो सब के सब जबान से हो जाते, जबान की वजह से बढ़ जाते। आप ठीक है, आप घर में रहते, हम बर्दाश्त क्यों कर खत्म हो गया? जहाँ पर बात आती नहीं, हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे होते। जब ये सूरत हाल आएगी तो जाहिर सी बात है फासले बढ़ेंगे, फासले बढ़ेंगे तो घर टूटेंगे। और हकीकतन आज आप देखें पूरी दुनिया के अंदर अब ये वबा पाकिस्तान में भी आ गई कि घर टूट रहे। आज तलाक का रेट कितना है? हकीकतन यही है, ये बड़े बड़े मकानात हैं, सब कुछ है, मगर बड़े बड़े लोगों के अंदर सेपरेशन हो गई। और आप जाके कोर्ट के अंदर जाए, अब हजारों जो मतलब केसेज हैं वो यही है, खुला के या तलाक के। अब आपके यहाँ जैसे कोई मसला ही नहीं, खुला ज्यादा है, खुला ज्यादा है। वजह क्या है? खुला ज्यादा है। अभी एक कॉल आई थी जिस तरह से आपकी कॉल भी हमसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, क्या हाल है? जी ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी ठीक ठाक। और टीवी से मेरी आवाज ना सुनिए प्लीज। बात करना चाहता हूँ।
चलें जी, तो आप दोबारा कॉल कर लीजिएगा। हाँ जी, ये जो बात हुई है, क्योंकि मिसेस अंजुम आपका तो इसमें एक्सपीरियंस भी रहा है और कितने ही लोग आपको रिवर्ट करते होंगे और कहते होंगे हमारे साथ तो ये मामला होगा, हम फुला ले रहे हैं, अल्लाह ना करे इस तरह की कोई भी चीज़। और फिर पहले भी हमारे कॉलर थे जिन्होंने बात की और मैंने भी फिर ये बात की कि शादी होती है तो हम घर वालों को सेटिस्फाई करने में लग जाते हैं। बहुत सही पॉइंट कहा। हाँ, कि ये मैंने हर शादी में देखा है कि इंस्टेड ऑफ दैट कि आप एक दूसरे की अच्छाई बुराई को एक्सप्लोर करें, वो नहीं पता चलती, ये पता चल जाता है कि किससे कैसा रिलेशनशिप है। बहुत सही नुसरत, खुद ही तुमने इतना अच्छा पॉइंट फिगर आउट किया कि वो आपस में जो केमिस्ट्री नए दूल्हा दुल्हन की मिलनी चाहिए, आपस की अंडरस्टैंडिंग, उन्हें तो आखिरी वक्त तक साथ रहना है, वो आपस में अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। वो अम्मी को खुश करना तो नंद को खुश करना, वो बेचारी लड़की जो अपना घर से आती है वो उसमें रह जाती है। और बेटे को भी हमारे यहाँ काउंसलिंग की कमी है, बच्चों को, लड़कों को नहीं समझ आता कि टैकल किस तरह करें नई बीवी को। घर में एक नया, सबसे देखो घर में जो मजबूत पोजीशन है वो एक माँ की है, एक माँ की है, एक औरत की है। वो जो माँ है जो कल को सास भी बनती है, उसी का रोल होता है। तो एक औरत को ये समझना चाहिए हमारे इस्लामी पहलू के हिसाब से, सोशली हर हिसाब से, सबसे पहले उसको इस्लामिक और देन सोशली कल्चरली उसको समझना चाहिए कि वो कितनी रिस्पॉन्सिबल है। और अगर कोई बच्ची रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप उसकी शादी कर ही क्यों देते हैं? अगर वो इतनी ना समझे, आप यकीन कीजिए खुला के जो केसेस ज़्यादा हमारे पास से जब आते हैं, जब हो चुकी होती है, तो मैं जरूर उनसे पूछती हूँ कि तलाक थी कि खुला थी। तो खुला के इतने स्टूपिड बार दफा रीजन दिए गए कि सास कहती थी हर हफ्ते में 2 दफा अम्मी के यहाँ क्यों जाती हो। तो आप यकीन कीजिए पेशेंस बिल्कुल नहीं है। मुझे मुझसे समझ नहीं आता ये पेशेंस कहाँ चला गया है लोग। अच्छा, ये बात भी मैं एहतरामन जरूर कहना चाहूंगी कि होता है कि आपके घर में बहू है, लेकिन जिस तरह बेटा है ना, आप उसे अपनी नजरों से दूर नहीं कर सकते। चलिए सिस्टम है, बेटी ने दूसरे घर जाना है, लेकिन उसे भी अपने अम्मा अब्बा से मिलने दें। उसकी मोहब्बत आप लोगों के आके आपसे कमियां ज्यादा या उनसे कमियां ज्यादा नहीं हो गई है। बल्कि यहाँ पर मैं एक बात, बल्कि कुछ मामला ऐसा भी आता है कि कुछ आजकल की खवातीन जिस तरह से आजकल अपने आप को एक्सपोजर वो चाह रही है कि बस किसी न किसी तरह उनका, चाहे वो सही तौर पे आए या गलत तौर पे, गलत अंदाज में आए, बस एक्सपोजर चाहिए। मैं दुनिया में मुमताज नजर आऊँ, ठीक है भाई, औरत के अंदर ये फितरत है कि सबसे मुमताज नजर आने की, मगर उसके लिए अपना घर तबाह करना। अभी कुछ अर्से पहले, कुछ दिनों पहले की बात है, एक मीडिया पर्सन है, उन्होंने घर से अपने शौहर से खोला इस वजह से ले ली। घर में किस वजह से झगड़े की वजह ये थी, वो कहने लगी कि भाई मैं एक स्कूल बनाना चाह रही हूँ और मैं जो हूँ वहाँ पे गरीब बच्चे पढ़ेंगे। उसके लिए वो अपने हस्बैंड से झगड़ा करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि आप मुझे जो है आप मेरे इसमें साथ दें। उन्होंने कहा भाई अभी मामला, अभी घर हमारा वो नहीं है, पहले घर बना लेंगे, स्टेबल नहीं है, और आपको नहीं, मेरी ये ख्वाहिश है और मैं तो अगर नहीं, वो खुला इस वजह से लेगी। इस किस्म के मामला आते हैं कि आप जो है अपना घर तबाह करके, यानी दुनिया में मैं एक बहाना ही लगा खुला मामला क्या होता है असल में, खवातीन के अंदर एक ये प्रॉब्लम आ गया है और मर्दों के अंदर भी आया है कि बस नुमाया नजर आए और फिर उनकी खवातीन के अंदर एक्सेप्ट करते हैं। आपने बड़ा डर कहा कि 3 बैठी हुई है और खवातीन के बारे में इन्होंने दूसरी दफा मैंने इनकी तरफ देखा तो इन्होंने कहा नहीं, मर्दों में भी आ गया है, बट आई रियलाइज नो प्रॉब्लम। तो बस वो ये समझती है कि बस किसी वजह से उनको मुमताज हैसियत माशरे में मिल जाए, कोई ऐसा काम कर ले जिसके लिए उनका अपना घर तबाह हो रहा है, अपने घर की उनको फिक्र नहीं है। फिर दूसरा बड़ा मसला ये है कि रहनुमाई करने वाले, माजरत के साथ रहनुमाई करने वाले वो लोग हैं जिनका अपना खुद जो घर है वो डिस्टर्ब है। जब वो उनका अपना घर डिस्टर्ब है तो वो भला आवाम को किस तरह वो अपने बेहतरीन घर और बेहतरीन मुस्तकबिल बना सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। कौम की रहनुमाई इंतहाई झूठे लोग कर रहे हैं, जो मतलब आपकी सियासी की बात नहीं करूंगा मैं, समाजी अखलाकी जो लोग कर रहे हैं इंतहाई, मतलब वो खुद मुकम्मल नहीं पता खुद। अच्छा, और ये बात आपकी, ये बात आपकी मैं इसलिए इसको सेकंड करूंगी क्योंकि बहुत से लोग ऐसे फोरम्स पे आके बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब आपको मौका मिलता है, अल्लाह उनका भी साथ दे, उन पर रहम करे, जब आपको मौका मिलता है कि आप उनकी अपनी जिंदगी देखें तो आपको अंदाजा होता है कि वो बेचारे खुद कितनी महरूमियों का शिकार हैं और खुद उनके हाथ से क्या क्या चला गया है और वो लोगों को बैठ के ताकीद कर रहे थे। एक जुमला देना चाहूँगा, मैं फिर आयशा से बात करना चाहती हूँ। क्या है प्रॉब्लम हमारे यहाँ नुसरत जो है ना, वो ये है
एहसास कमतरी की बिना पे तामीर होने वाली एहसास बरतरी, इस वजह से पूरा माशरा जवाब पर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे आयशा आपसे बात करनी है। इन्होंने जो बातें की ना, उसमें एक ये पॉइंट है मेरे जहन में कि जब जैसे ही हमारी ये नुमायाँ होने वाली, कुछ लोगों को काम करके नुमायाँ होना है, कुछ लोगों को ब्रांडेड कपड़े पहन के नुमायाँ होना है, महंगी तरीन चीजें, सैलून, ये चीजें मना नहीं है। हम भी ये सब चीजें करते हैं, सब करते हैं, अच्छा भी लगता है और हम तो ताकीद करते हैं कि करना चाहिए, सो दैट यू फील गुड अबाउट इट। लेकिन कहीं कहीं ये ज्यादा हो जाता है, तजावुज कर जाता है हद से, और फिर आपके घरेलू मामलात, परेशानियां, और मैंने ये भी देखा है कि कभी कभी हम उस फीलिंग में चले जाते हैं कि हम सेटिस्फाई नहीं हो पाते किसी भी चीज से। वो है ना, सब्र, शुक्र, कंटेंट, ग्रैटिट्यूड अल्लाह ताला के सामने, वो सब चीजें एक तरफ हो जाती हैं। कपड़े रखे हैं, एक छोटी सी मिसाल है, सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, और कपड़े, ये भी अच्छा नहीं था, ये भी अच्छा नहीं था, ये चॉइस भी अच्छी नहीं थी, ये भी नहीं थी, और इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें। ये एक लिमिट तक तो हो सकता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ जो ज्यादा है, बहुत ज्यादा, आप समझ रही होंगी। मयाना रवि की बात करें आप, हमारे यहाँ मयाना रवि नहीं है। और अगर हम कुरान को उठाते हैं ना, तो एक हमें इरशाद मिलता है जिसका तर्जमा ये है कि दिल लालच के बंधे में, यानी कि दिल का बिल्टन ही लालच है, आपको लालच ही होती रहती है। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इब्ने आदम को अगर सोने की ईंट भी दी जाए तो भी उसका पेट नहीं भरेगा, तो वो बोलेगा कि मुझे एक और मिल जाती तो बहुत बेहतर। सिवाय खबर के मिट्टी के उसकी जो लालच है उसको कोई नहीं भर सकता है। तो ये तो मतलब बिल्टन है, दिल बना ही लालच से है, तो ये खत्म नहीं किया जा सकता है। एक सूरत है, सूरत ये है कि आप अपनी कब्र को जब याद रखते हैं ना, तो ये चीजें आपके अंदर खुद ब खुद कम होती चली जाती हैं। अब एक और चीज देखी गई है कि आप अपनी जरूरियात पूरा करने के चक्कर में जो दूसरों की जरूरियात है उनको नजरअंदाज कर देते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस फरमान को बिल्कुल हम पसे पुष्ट रख देते हैं, जहां हुजूर ने फरमाया कि वही पसंद करो जो अपने भाई के लिए पसंद करते हो, अपने लिए जो पसंद है वही भाई के लिए, वही भाई के लिए पसंद करो। लेकिन हमारे अंदर ये चीज नहीं है, ये हमें डालनी पड़ेगी, खुद कोशिश करनी पड़ेगी। हर चीज, हर काम के लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी, बगैर कोशिश के कुछ भी नहीं हो सकता है। और इसमें वो पहलू भी आ जाता है जो हम एक दूसरे को इन रिश्तों में भी, जो घर में रिश्ते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, उनमें भी एक दूसरे को अपने इन्हीं मटीरियल चीजों से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक भाभी जो है या एक भाई जो है बेहतर कमाता है, दूसरा उस तरह नहीं कमाता, तो आपके बच्चों से लेकर आपका अपना आप जहाँ जहाँ नुमाया हो सकता है, वो किस स्कूल में पढ़ते हैं, आप किस ब्रांड के कपड़े पहनती हैं, आप किस तरह लोगों से उठती बैठती हैं, गाड़ियाँ कितनी हैं, ये जो कॉम्पिटिशन है ना आपसी रिश्तों में, जो घर को घर बनाते हैं, वो भी बहुत, इसमें फिर देखिए नुकसान हमारा खुद ही होता है। अगर कोई बीवी ये चाहती है कि वो जो भाई की बीवी है उससे ज्यादा नुमाया नजर आए, तो वो अपने शौहर को प्रेशराइज करती है, और ज्यादा कमाया, और ज्यादा कमाए, और ज्यादा, या हमें ऐसी चीज करनी चाहिए, वैसा करना चाहिए, गाड़ी बदल लेनी चाहिए। और अगर वो शौहर बेचारा नहीं कर पाता है तो बस उसकी शामत है फिर, और फिर क्या आपने उनको तो नुकसान नहीं पहुंचाया, आपने खुद अपनी जात को नुकसान पहुंचाया, खुद आप परेशान हुई कि मैं कहाँ से इस तरह से अरेंज करूं, और खुद आपने अपने शौहर को परेशान किया और घर का माहौल खराब किया, तो इससे आपका अपना नुकसान है, सामने वाले को कुछ नुकसान नहीं। अच्छा, मैं आपसे मजहबी एंगल से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, कॉलर के बाद आप इसका जवाब दीजिएगा। अगर मेरे पास इतना है कि मैं लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकूं, असरअंदाज कर सकूं, और मैं जानबूझकर ऐसा करूं, और वो भी इस रविश या इस दौड़ का हिस्सा बन जाएं कि उनके पास भी वो सारी मटेरियल चीजें होनी चाहिए, तो मैं कितनी कसूरवार हूं, ये आपने आज जरूर बताना है, क्योंकि हम एक दूसरे को राग़ब यूं ही कर रहे हैं कि मेरी घड़ी ये है तो तुम्हारी कौन सी है, और 4 दिन बाद तुम्हारे पास ये होनी चाहिए। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मैं आपको इतना असरअंदाज कर रही हूँ कि आप दीन से दूर हो रहे हैं, दुनिया की तरफ बहुत ज्यादा जा रहे हैं, तो मैं कितनी कसूरवार हूँ, ये आपने मुझे आज समझाना है। लेकिन हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब, आप सबसे पहले आपको इतना अच्छा शो करने पे बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरा नाम साबिर डार है और आप शायद मुझे जानती भी हैं। हाँ जी साबिर साहब, मैं पहचान गई आपको, अब आवाज समझ आ गई मुझे। अच्छा, क्या खैरियत से? ठीक ठाक ठीक ठाक। ये आज जो आपने टॉपिक शुरू किया हुआ है ये बहुत प्यारा है, और इस देखिए ईद से चंद रोज पहले आपका ये प्रोग्राम करना भी एक बहुत बड़ा अब रमजानों में जो लोग रातों को खरीदारी पे निकलते हैं
पता नहीं कहाँ से पैसे लेके जमा करके और अच्छी से अच्छी चीज लेनी है, सामने वाले को दिखाना है, ये करना है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। महीना रवि इख्तियार करें आप लोग, 30 रमजान अल्लाह की इबादतों में आप गुजारते हैं, उसके बाद आप लोग जो जिस तरीके से देखते हैं हम लोग, उसके बाद उसने अगर ये सूट लिया तो मैं इससे अच्छा वाला लूंगी, उसके अभी आपने जैसे कहा घड़ी पहनी है तो ये इस चीजें नहीं होनी चाहिए। तो प्लीज मेरा पैगाम आप पहुँचाएं कि महीना रवि इख्तियार करें। ठीक है। रमजान करीम का महीना गुजरने के बाद जो दिन आते हैं उसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें, और सबसे बड़ी बात अपने घर को घर समझे, ठीक है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नसीर साहब की भी कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं गुजरात से नसीर बात कर रहा हूँ। जी सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपका टॉपिक है बहुत अच्छा आपने रखा है, और ये कि उसकी मैं घर इस बर्दाश्त के लिए खत्म हो गया। मैं ये मेरे ख्याल में कि जो पहले मकान खाते होते थे घर, तो घर में सुकून होता था जी, तो बर्दाश्त रहती थी। अब जो ज्यादा बिल्डिंग बनाने से एक तो जो जब माली तौर पे ज्यादा पैसा मकानों पे लगा देंगे तो घर में माली तौर पे कमी हो जाएगी, आपका जो खर्चा ज्यादा आ जाए, तो इस वजह से बर्दाश्त कम होगी, लड़ाई ठीक है ज्यादा हो जाती है। ठीक है नसीर साहब, थैंक यू सो मच। जी, जो मैंने आपसे सवाल किया, मैंने इब्तिदा में एक हदीस बताई थी आपको कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा से फरमाया था कि फल के छिलके भी ना फेंको। क्यों? कि पड़ोस के बच्चे उसको अगर उसको हासिल नहीं कर सकेंगे तो तकलीफ में आएंगे। तो हमारे पास अगर अल्लाह ताला ने इतना दिया है तो हमें हुजूर ने तरीका कार भी बताया है कि आप अगर आपको अल्लाह ने इतना दिया है तो आप राह खुदा में उसे खर्च करें, ये आपको आगे काम आएगा। और अगर आप इस तरह से करते हैं कि तकब्बुर की नीयत से, तो फिर इस हदीस को भी ज़हन में रखें कि जो दुनिया में तकब्बुर करता है, क़यामत के रोज अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तकब्बुर की वजह से वो छोटी से भी छोटा होगा और लोगों के सामने आएगा। तो अल्लाह ताला इस अजाब से हमें महफूज रखे, क्योंकि अगर हम ये काम करते हैं ना तो तकालीफ में सब लोग आ रहे हैं। एक सामने वाला जो शख्स अफोर्ड नहीं कर सकता और हम आखिरत के अजाब को फिर हमें बर्दाश्त करना होगा। तो और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो अभी कॉलर बात कर रहे थे, खैरुल उमूरी औसतिहा, बेहतरीन काम वो है जिसमें मयाना रवि है। मयाना रवि इख्तियार करें ना, बहुत अच्छा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपको पता है कि आपके इर्द गिर्द में ऐसे ही लोग हैं जो वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप पहनिए, बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है जो बड़े कहते हैं ना मौका महल के हिसाब से करें। जी तो हाँ, शुक्र तुम लाजिदन्नकुम, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह ताला और देगा। उसकी नेमतें वाफिर हैं, आप उसकी नेमतों को इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसका तरीका कार है, उस तरीके से जरा भी हटेंगे तो फिर नुकसान उठाएंगे। बिल्कुल, आप कुछ कहना चाह रहे थे? बात इन्हीं की थी कि मतलब जो है मयाना रवि और सारी चीजें, तो दरहकीकत देखे माशरा जो डिस्टर्ब हो रहा है वो वहीं से हो रहा है कि आपके अंदर मयाना रवि जो है वो खत्म हो चुकी है। जब मयाना रवि जब खत्म होगी, और फिर इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि घर वालों का रवैया, और फिर आपस में एक दूसरे से जिस तरह ये बात हुई है कि सबकत ले जाना, सबकत ले जाने की वजह से फिर होता है तसादुम। अच्छा, मैं यहाँ पर आपसे सवाल करना चाहूंगी क्योंकि आप यहाँ मेल रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे पास। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि बहुत सी चीजें जो मर्द हजरात अपनी बेगमात को समझाते हैं वो समझ जाती हैं, मैं मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ, वो अपने हस्बैंड का साथ देने की भी कोशिश करती हैं। तो क्या वो काउंसलिंग की कमी है, क्या वो कम्युनिकेशन की कमी है, क्या आप बस उससे तवक्का तो करते हैं लेकिन आप उसके साथ इस तरह का मामला नहीं रखते कि वो आपकी इस बात में आपका साथ दे सके? आपकी बेगम की मैं बात कर रही हूँ, यानी जितनी भी बेगमात देख रही हूँ बात कर रही हूँ, और इस बारे में आपने भी जवाब देना है। पहले तो बता दूं कि मेरी अभी बेगम नहीं है। नहीं, मतलब आपकी बेगम की बात है, आप उससे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। तो ये मैं बताऊं, असल में देखें, जहाँ तक एक बात है, और मैंने मतलब आप जब बहसियत सहाफ़ी और सब आप बहसियत राइटर जब चीजों को देखना शुरू किया तो मैंने कहा किताबों से इसके बजाय लोगों को पढ़ा जाए। और हकीकतन एक चीज सामने आई कि प्रॉब्लम क्या है मर्द जात की तरफ से, मैं बड़ी से जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि मर्द जात की तरफ से बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अंदर की औरत को समझने की कोशिश नहीं करते। जब आप अंदर की औरत, जो एक अंदर की औरत क्या है, आज आप समझा दें। बिल्कुल, ये कहीं पर भी आप ये जिस तरह के देखें, कोई
के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो वो एक अंदर उसके क्या एहसास है, क्या जज्बात है, क्या ख्वाहिशात है, और वो कौन सी ख्वाहिशात, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसके तहत शऊर में दबी हुई है, आप वो नहीं निकालते। आप अपने पास से मर्जी जब थोपना शुरू करते हैं, लोगों के पास जब मर्जी जब थोपना शुरू करते हैं, तब आप मर्जी थोपना शुरू करेंगे और फिर ये कहना शुरू करेंगे। बेगम आएंगी ना, फिर सवाल करूंगी, सॉरी रॉन्ग क्वेश्चन मुड़ जाएगा इसलिए क्योंकि ये पहले तो बहुत अच्छी लगती है फैंटेसी में बातें, जब बेगम आएंगी और आप यही करेंगे ना, तहत शऊर तक जाएंगे बेगम जी, आप उससे मैं आपसे उस वक्त बात दरअसल क्या होती है, जब हम समझने की तरफ जा भी नहीं रहे ना, आप प्रॉब्लम क्या है, वजह क्या है, मेरे हुकूक, मेरे हुकूक। आप दोनों साइड से ये होता है कि वो कहते हैं कि मैंने जो कह दिया ये बात होनी चाहिए, वो चाहते हैं कि मैं जो कह रही हूँ वो हो। तो अब क्या होता है, बल्कि देखिए जब घर बनता है ईसार से, ईसार हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही है, हुकूक की बात हो रही है, कोई सेक्रीफाइस आपने शादीशुदा होने का बता के ना बहुत सारी चीजों से अब चले मैं बहसियत बेटा भाई वो बताना चाह रहा हूँ कि आप देखिए ईसार हमारे यहाँ नहीं है। हम क्या कहते हैं, नहीं जब ये कह दिया है, मैं अगर बड़ा हूँ तो मैंने जब कह दिया तो ये बात बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है, ये हम नहीं समझ पाते। जरा ओवरऑल जो मैंने पूछा था कि बेगम से हस्बैंड मेरे ख्याल में जो चाहें वो करवा सकते हैं, वाइस वर्सा ये रिलेशनशिप ही ऐसा है, पार्टनरशिप है आपस की, लेकिन फिर भी हम जो कुछ मकासद ऐसे होते हैं जिसमें हम बिल्कुल सेम पेज पे होते हैं, लेकिन ऐसी चीजें जहाँ बेगम को शायद आपकी कम्युनिकेशन की जरूरत है, आपकी काउंसलिंग की जरूरत है, वहाँ वक्त नहीं दिया जाता। देखो बात चीजें जो हम एक्चुअली एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। अगर आपका हस्बैंड आपके 4 चीजें अंडरस्टैंड कर रहा है तो बीवी उस 6 चीजें अंडरस्टैंड करेगी हस्बैंड। बिल्कुल। बीवियां जो सिर्फ चाहती हैं वो हस्बैंड देखो प्रोवाइडर तो वो होते ही हैं, अच्छा उसके बाद वो एक अंडरस्टैंडिंग और एक मेलो का एक अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशनशिप चाहते हैं कि वो अगर वो जैसे बहुत छोटी सी बात है, अम्मी के यहाँ जाना चाह रही हैं या वो कल सुबह देर से उठेंगी, सास को इतराज ना हो, कुछ भी बच्चियों के साथ हो सकता है, लेट उठ, तो हस्बैंड पहले अंडरस्टैंड करे, वो ये चीज जाके अपनी अम्मी को बताए कि रात में किसी वजह से तबीयत सही नहीं थी, वो आज सुबह उठ के खाना नहीं पका पाएगी या नाश्ता नहीं दे पाएगी, मैं एक नॉर्मल बात कर रही हूँ। तो जब मियाँ अंडरस्टैंड करता है बीवियों को, इनिशियली देखो बच्चियां आती हैं एक नए, चाहे वो मंगनी रही हो, चाहे निकाह रहा हो, चाहे वो आपका फ्रेंड रहा हो, जब वो हस्बैंड बनता है इज अ टोटली डिफरेंट पर्सन, और जब वो बीवी बनती, लड़कियां वही प्यार मोहब्बत और एक मोहब्बत ही मांगती हैं जो उनको अपने घरों से मिला होता है, बहुत ज्यादा माओं से और अपने बाप से। फादर्स बहुत ज्यादा बेटियों को स्पॉइल करते हैं, हमारे कल्चर में वो स्पॉइल्ड होती है फादर से बहुत ज्यादा, तो वो बच्चियां जब एक घर में जाती हैं तो वो अपने हस्बैंड से ही चाहेंगी कि वो उनको, अगर वो 4 बातें हस्बैंड उनकी नॉर्मल छोटी छोटी बातें अंडरस्टैंड करे, उस पर उनसे झेरा नहीं करे, वो बोले अच्छा ठीक है तुम सही है, यू रिलैक्स, आई विल हैंडल इट, तो वो 12 बातें अपनी बीवी से अपनी चॉइस की मनवा सकता है। आपकी अफेक्शन आपके जब भी डेवलप होती है जब सामने वाला कोऑपरेटिव हो, और अगर वो कोऑपरेशन छोटी छोटी चीजों में नहीं करे तो आप पुट ऑफ हो जाते हैं, आप बोलते हैं ये इंसान भी है कि नहीं है, यू नो आप एक नए आदमी। मैं तो ये सोचती हूँ बिल्कुल सास ससुर हूँ या आप जिस घर में भी जाएं, आपकी अपनी जिम्मेदारी है वो निभानी चाहिए, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, कामयाबी इसी में है। लेकिन आपके आने से पहले भी तो उनका कारवा और निजाम चल रहा था ना, तो एक लड़की के आने के बाद वो सब कुछ बदल के सिर्फ उसी के कांधों पे क्यों आ जाता है? मुझे ये अक्सर फील होता है कि ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप पहले भी तो चला रहे थे ना, अगर आप उस सिस्टम को चलाएं और उसे भी उस सिस्टम का हिस्सा बना लें, अल्टीमेटली वो तबाना हो जाएगी और वही सब कुछ करेगी, लेकिन शुरुआत से ही ऐसा ना सोच ले कि बस यही करेगी। असल में देखिए जब ये आयशा इसको कंक्लूड कर दीजिए, वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो गया। हर एक को हर रिश्ते को हमें समझने की जरूरत है और समझकर उसके जो फराइज हैं उसे अदा करने की जरूरत है, और अगर हम दीन को थोड़ा समझ लेंगे तो हमें बहुत सारी आसानियां इंशाल्लाह मिल जाएंगी। हाँ, तो ये जरूरी है भाई, ये बात इन्होंने समंदर को गूंजने में बंद कर दिया है कि दीन को समझ लें, और सब्र शुक्र की जो बात है ना, ये अगर हम समझ लें तो भी बहुत मसाइल हल हो जाएंगे हर लेवल पर। सब्र शुक्र, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का आप लोगों का, बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा डिस्कशन रही,
और बहुत कुछ सीखने को मिला। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, और कोई चीज़ अगर अच्छी आप करते हैं तो मेरी भी ज़िंदगी का ये छोटा सा तजुर्बा है कि अच्छी चीज़ें आपको अच्छा ही रिजल्ट देती हैं। वो ना दे जिसके साथ अच्छा किया, मगर एट द एंड ऑफ द डे यू गेट द गुड रिजल्ट। तो गुड रिजल्ट लेते रहिए, दुआओं में याद रखिए। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।